Good morning, Pilamane. Let us wait for some time. How kids join karantu, then we'll start. So, ଆମେ tissues discuss କରୁଥିଲେ and tissues रे ଆମେ connective tissue discuss କରିଥିଲେ. तो connective tissue ରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ that ତାର basically ଦିଟା component ଅଛି. କଣ କଣ component ଅଛି? ତାର ଗୋଟେ ହଉଛି matrix and ଗୋଟେ ହଉଛି constituents. ହେଲା କି ନାଇଁ? तो मैट्रिक्स रे हमें देखिथिले बेसिकली पानी एंड अदर आयन सॉल्ट सल्यूट सब गैस वेस्ट प्रोडक्ट सब रहउची एंड इन केस ऑफ हमर कौन इन केस ऑफ हमर कंपोनेंट्स नाना प्रकार सेल्स रहउची तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ए पर्टिकुलर टिश्यू ହେଇଗଲା ଗୋଟେ particular tissue ଆମେ discuss କରିବା that is blood and lymph ତାପରେ second class ରେ ଆମେ discuss କରିବା କଣ second class ରେ ଆମେ discuss କରିବା ହଉଛି what bone and cartilage as a connective ଠିକ ଅଛି so our heading today is blood as a connective tissue and next class our topic will be bone and cartilage as a connective tissue. So now this is the background. Background रे हमें human circulatory system देखिते. That our circulatory system रे कौन components अछि? Actually कौन? Basically blood टा पढ़ी की हमें circulatory system पढ़ देले भलो. And muscle टा पढ़ी की muscular system पढ़ले भलो. Bone टा पढ़ी की tissues bone पढ़ले भलो. But generally कौन हमरा अलगा topic देकी tissues. तो सेही पे हमको एटा अलगा रे भी पढ़े हम पढ़ुची आ ହେଲା कि नहीं तो आमे सर्कुलेटरी सिस्टम रे कौन देखिबा बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम गोटे होची हमर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो थरे हमर कौन रहउची जो थरे हमर आर्टरीज रहउची वेन्स रहउची एंड ब्लड रहउची तार पैरेलल आउ गोटे सिस्टम चले दैट इज कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम तो लिम्फेटिक फ्लूइड को हमें लिम्फ कहू एंड लिम्फ वेसल लिम्फ नोड से हैला तो सर्कुलेटरी सिस्टम रे हमर जो ब्लड अछि ब्लड रे हमर प्लाज्मा एंड कंपोनेंट्स अछि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहू एंड ब्लड वेसल्स रे आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज अछि ठीक अछि तापरे डब्ल्यूबीसी नाना प्रकार अछि ग्रैनुलोसाइट्स एग्रानुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स रे तीन प्रकार डब्ल्यूबीसी अछि न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स ए ग्रैनुलोसाइट्स रे तमर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स हैला तो ई सब नाना प्रकार जिंस आज हमें डिस्कस करिबा फाइन सो दिस इज द बेसिक प्रेजेंटेशन so we will be discussing about them in detail. So now आमे कौन करूचे this is what we are taking the जब blood आमे नेबा हैला we will take blood and ताको आमे कौन करिबा सेंट्रीफ्यूज करदबा तो सेंट्रीफ्यूज जब हम ब्लड टाको करि देबा आमे तीन प्रकार रा गोटे बैरियर्स पाइबा we will get three layers हैला तो suppose this is blood okay so we will be getting basically three type of layers हैला गोटे लेयर ऊपर भासुची this is around 55% आउ गोटे लेयर एकदम तळे बसी जाउची this is पाखा पाखी 44.9% and 0.1% हे जीव तमरो बफी को हे गेला तो 55% रे के आसी जाउची ब्लड प्लाज्मा around 44.9 जे तळे बसी गेला they are all the blood cells
including only RBC ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯୋଉ ବଫି କୋଡଟା ହଉଛି ସେଇଥିରେ WBC ଅଛନ୍ତି and platelets ଅଛନ୍ତି ହେଲା so this is the basic concept of blood okay तो ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖିବା so this is also called the hematocrit value ହେଲା ତ ଆକୁ ଆମେ hematocrit value ବି କହିପାରିବା ମାନେ କେତେ percentage blood ରେ ଆମର RBC ଅଛି ଓକେ any problems ତମେ ଡିସ୍କସ କରିବ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଏନ କରୁଛ ଓକେ ଚାଲ ତ ନାଓ ଏଇଟା ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ବ୍ଲଡ ଡ୍ର କଲେ ପେସେଣ୍ଟ ରୁ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ କରିଦେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ କଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ ଟ୍ୟୁବ ରେ ତିନୋଟି ଲେୟର ହେଲା ସଭା ଉପର ଲେୟର ଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ଲାସ୍ମା ତାପରେ ଗୋଟେ ମିଡଲ ରେ ହାଲକା ଲେୟର ଟେ ହବ ବଫି କୋଟ and ତଳେ ଗୋଟେ deep red color layer ଟା ହବ that is called red blood cell. So this is basically the concept. तो ଆମର blood vascular system ରେ blood ଆମେ ପଢିଉଛେ ତ composition of blood କଣ blood is a connective tissue ତ ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ जो ପ୍ଲାସ୍ମା ପଢୁଛେ ତ ପ୍ଲାସ୍ମା କୁ ଆମେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କହିପାରିବା କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ ଭାଷାରେ ପ୍ଲାସ୍ମା ଟା କଣ ଦିସ୍ ଇଜ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ and formed elements ରେ ଆମର କଣ ଆସିଯିବ this is your composition ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ପାଇଁ blood is also a connective tissue କାହିଁକି ନା ସେଇଥିରେ formed elements ବି ଅଛି and ସେଇଥିରେ ପ୍ଲାସ୍ମା ବି ଅଛି but ଏଇଥିରେ ପ୍ଲାସ୍ମା 55% ଅଛି ତା ମାନେ this is a fluid connective tissue ଏଇଟା flow କରିବ ଏଇଟା ବହଳିଆ ନୁହଁ କି ଜମି ଯିବ understood so blood is called a fluid connective tissue why it is called a fluid connective tissue because it has a lot of plasma more than 50% blood is made up of plasma ठीक ଅଛି ତ ଏତେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆଉ କୋ କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ ରେ ନଥାଏ ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ ପଢୁଥିଲି ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଛାଣିଦବ ତ ଯୋଉ ଆମେ ଛାଣିଦେବା ତ ଯୋଉଟା ଛଣାରେ ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଫର୍ମଡ ଏଲିମେଣ୍ଟସ and ଯୋଉଟା ଛାଣି ହେଇକି ତଳକୁ ପଳେଇଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ପ୍ଲାସ୍ମା ତ and ଯଦି ପ୍ଲାସ୍ମାରେ ବେଶୀ ଅଛି କମ୍ପୋଜିସନ ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଫ୍ଲୁଇଡ କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ ବିକଜ ଏଇ କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ ଟା ସ୍ଥିର ରହିବନି ଏଇଟା ଫ୍ଲୋ କରିବ ଓକେ now we will go ahead ତ ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ପ୍ଲାସ୍ମା ତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାସ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ଏଇଠି ବି ତମକୁ ସବୁ ପେଜରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଚିତ୍ରଟା ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଦ ବ୍ଲଡ ପ୍ଲାସ୍ମା ତ ବ୍ଲଡ ପ୍ଲାସ୍ମାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲଟ କରିଦବା ହେଇଗଲା ତ କ୍ଲଟିଂ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡା ପଳେଇବେ ତ ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ୱିଲ୍ ବି କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ ତ ସେଇ ପାଇଁ କ୍ଲଟିଂ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାସ୍ମାଟା ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ସେରମ So that is why plasma without the blood clotting factors is called serum. ହେଲା ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ତ blood so these are very important questions for NEET ତ blood minus cells is equal to plasma and plasma minus clotting factor is equal to serum ठीक ଅଛି तो blood minus cells होची plasma and plasma minus clotting factor होची serum now तो एई प्लाज्मा रे हमर कोन अछि तो 90 ରୁ 92% खाली पानी अछि वाटर हेगला तो 90 to 92% is water and proteins will make around 6 to 7% या 8% को लिखा है
एंड बाकी सबू जेतिकी हमर सॉल्यूट्स अछंती दे विल मेक 1%. ହେଇଗଲା ତ 90 to 92% water, around 6 to 7% proteins, and 1% is the fresh. ହେଲା now तो ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ରେ ଆମର ତିନୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଅଛି. फाइब्रिनोजेन जो लिखिची दैट इज बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. आमे फाइब्रिनोजेन छड़ा टुडे वी विल डिस्कस 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स. बट तुम कहबे ताले से माने काहे खाली फाइब्रिनोजेन लिखचती बिकॉज़ बाकी सब ट्रेस अमाउंट रे दरकार पड़े हैला त माने रेगुलेटरी फंक्शन कर किंतु फाइब्रिनोजेन टा क्लॉटिंग रे यूज हुए. तो सही पे आउट ऑफ द 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स तमर फाइब्रिनोजेन टा ही 98% तैयारी कर दबो. तो सही पे आमे अलगा फैक्टर्स गुडा को एठी लिखिनो आउ बट व्हेन आई राइट तो आमे लिखिबा कोन आमे लिखिबा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स विल नॉट ओनली राइट फाइव. ठीक अछि तापर आमे ग्लोब्युलिन्स पाइबा एंड एल्ब्यूमिन पाइबा. तो फाइब्रिनोजेन कौन करे क्लॉटिंग रे यूज हुए. ग्लोब्युलिन्स कौन करे जे एक्ट एज एंटी. तो हमर तीन प्रकार ग्लोब्युलिन अछि अल्फा एंड बीटा ग्लोब्युलिन से माने ईसीएफ ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करिवे. ऑस्मोलारिटी माने कौन कंसंट्रेशन. एंड जो गामा ग्लोब्युलिन अछि सेटा एंटीबॉडी रूप रे काम करे. हम टिके पर डिस्कस करबा हैला एल्ब्यूमिन्स से भले ऑस्मोटिक बैलेंस रे मेंटेन करंती रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर रे मेंटेन करंती एसेट्रा. तापरे ग्लूकोज अमीनो एसिड लिपिड कोलेस्ट्रॉल एवडा सब ब्लड रे थिबो से कोन करिवो ट्रांसपोर्ट पे. बिकॉज़ यू नो द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज व्हाट इट इज ए ट्रांसपोर्ट फ्लूइड. से नाना प्रकार जिंस नाना प्रकार जगह रु निए सोर्स रु नबर तबर टारगेट है कि नहीं. तो से पे ग्लूकोज अमीनो एसिड सब कोट आनिबो ये आनिबो तमर डाइजेस्टिव सिस्टम रु नै कि ढाल दबो लिवर रे. तापर लिवर रे प्रोसेसिंग हला परे प्रोसेस प्रोडक्ट गुडा लिवर रु नै कि बॉडी सेल्स से नै कि क्लियर. तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ओके. नाउ एबे हमें आगु को जिबा हेरी. तो आयन से आमे दी प्रकार आयन पाइबा कैटायन भी पाइबा आनायंस भी पाइबा. तो मेजर कैटायंस हमें कौन पाइबा सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम. एंड मेजर आनायंस हमें कौन पाइबा क्लोराइड बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट फॉस्फेट्स हैला एडा सब पाइबा. गैसेस पाइबा O2 CO2 N2 एंड तार भी उद्देश्य कौन ट्रांसपोर्ट. तो ब्लड ए गैसेस को डिफरेंट जगह को नहीं की जीतो. तापर आउथरे गोटे वेस्ट प्रोडक्ट अछि सेटा लिखा हेरी. तो वेस्ट प्रोडक्ट से कौन कौन हम पाइबा यूरिया यूरिक एसिड क्रेटिनिन जोड़ा भी थिबो तमरो हैला तोरा सब सेतर थिबो ब्लड रे काहे की ये सोर्स रु नहीं की किडनी को जीव सफा करिया. क्लियर. तो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ ब्लड. ओके चल लेट्स गो अहेड. तो एटा होची हमर डिटेल्स हैला. तो अबाउट ब्लड ब्लड र डिटेल्स हमें देखुचे. नाउ इन द डिटेल्स तम ब्लड केते. तो ब्लड होची 8% ऑफ बॉडी वेट. तो सपोज गोटे लोक 8 किलो रो 100 किलो रो अछि तार 8 लीटर्स ब्लड थिबो हैला. तो प्लीज रिमेंबर खाली 5 लीटर वेली नहीं इट इज 8% ऑफ बॉडी वेट. क्लियर. तो जो जनरली जनरली हमर एडल्ट्स माने केते थांती 60 टू 70 केजी मेल थिबो अराउंड 50 टू 60 केजी लेडीज थिबो. तो 50 टू 60 केजी 60 केजी रो 8% केते हे गला 4.8 लीटर्स. तो से लिखा है फीमेल रे 5 लीटर्स एंड मेल होची अराउंड 70 सपोज केजी 70 into 8 केते हे गला 5.6. तो से पे देखै छी 5 टू 6 लीटर्स बुझले कि नहीं. तो लाइक दिस नाउ तापरे
pH केते हबो तो एतु सब जिंस हमर मन रखा दरकार नहीं आमे रखिबा मीन फ्रैक्शन वेट 8% ऑफ बॉडी वेट तो केते रहुची पाखा पाखी नॉर्मल फीमेल रे 5 लीटर्स एंड नॉर्मल मेल रे 6 लीटर रहुची टेम्परेचर इज पाखा पाखी 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड ହେଇଗଲା तो विच आर 97 डिग्री सेंटीग्रेड हमर रहुची pH 7.35 to 7.45 viscosity ओके 4.5 to 5.5 होल ब्लड रा काहेकि ना सेथरे तमर ये भी थिबो हाँ ओके एंड तमर जो कौन तमर ऑस्मोलारिटी जो थिबो अराउंड पाखा पाखी 296 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर थिबो जोटा कि हम पाखा पाखी 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर नेबा मीन सैलिनिटी माने सोडियम कंसंट्रेशन केते अछि 0.9% एटा सब बहुत इंपोर्टेंट वैल्यू गुडा हिमेटोक्रिट माने केते तमर आरबीसी अछि तो अगेन देखिलो कि नहीं मेल रे पाखा पाखी 45 to 52% अछि फीमेल रे अराउंड 37 to 48% अछि ओके नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट केते फीमेल रे 12 रु 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड डीएल माने होची डेसिलीटर डेसिलीटर माने कौन 100 ग्राम एंड मेल रे 13 रु 18 ग्राम रहुची ओके तो ये सब काउंट गुडा हमें धीरे धीरे डिस्कस करिए क्लियर तापरे एल्ब्यूमिन तो आमे जो ब्लड प्रोटीन्स डिस्कस करिथिले सेथरे मेजर प्रोटीन टा कोटा एल्ब्यूमिन तो एल्ब्यूमिन कौन करिवो मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर टाको मेंटेन करिवो ऑस्मोटिक प्रेशर माने केते सॉल्यूट्स अछि एज कंपेयर्ड टू सॉल्वेंट हला and it is the major contributor of blood viscosity तो blood viscosity रे तमरो मेन सपोर्ट के करिवो एल्ब्यूमिन लिपिड हार्मोन जो हमर फैट सॉल्युबल हार्मोन कैल्शियम एंड अदर सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करिया पे भी सहायता करिवो किए एल्ब्यूमिन हला तो एल्ब्यूमिन रो फंक्शन उडा कोन क्लियर कट फंक्शन मेंटेन्स कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर तापरे ट्रांसपोर्ट ओके एंड हेल्प्स एज बफर्स बफर माने कौन करिवे ते माने ब्लड रो पीएच टाकू बढ़ी देबेनी या कमी देबेनी दे विल कीप द पीएच ऑफ ब्लड कांस्टेंट हला तापरे अछि हमर ग्लोब्युलिन्स 36% रहउची तेथरे अल्फा ग्लोब्युलिन बीटा ग्लोब्युलिन गामा ग्लोब्युलिन रहउची ठीक अछि तो अल्फा ग्लोब्युलिन कौन करिवो तो दे आर बेसिकली ट्रांसपोर्ट हैला तो ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन रिलीज्ड बाय डेड आरबीसीज ट्रांसपोर्ट्स कॉपर promotes blood clotting and transport lipid fat soluble vitamins and fat soluble hormones ठीक अछि नाउ बीटा ग्लोबुलिन दी प्रकार थाए ट्रांसफेरिन एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स तो से माने आयरन ट्रांसपोर्ट करंती एंड टॉक्सिन डिस्चार्ज रे हेल्प करंती एंड लिपिड ट्रांसपोर्ट रे भी सहायता करंती तापरे गामा ग्लोबुलिन सबुड इंपोर्टेंट ओके व्हाई इट इज कॉल्ड गामा ग्लोबुलिन इट लुक्स लाइक वाई our antibody गुडा वाई भलिया दिसत just like this so that is why we call them what we call them gamma globulins and ei jo gamma globulin mane ankara function kona they act as antibody ठीक अछि बुझि पारुछ किछि प्रॉब्लम अछि जदि डिस्कस करि परिबा ओके if there is anything to ask you can ask okay babani चला तापरे हमर जदि प्रोटीन्स को जदि हम सपोज आउट ऑफ दी 100 जति प्रोटीन अछि 6 ରୁ 8% ताकू जदि हम 100 नेबा ताले एल्ब्यूमिन ही हे जिवो 60% ग्लोबुलिन हे जिवो 36% एंड ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हे जिवे 4% ठीक अछि सो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन से कोन
ସେମାନେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓକେ, now so next we will go, so we have already discussed. So now this is your what? The distribution of details of blood. So blood 45% hochi composed elements and 55 hochi plasma. Connective tissue रे तमे जदि मने पकेई थिबो, okay, if you remember, because एटा ही नीट वीट रे क्वेश्चन पचारिबे। नीट रे सीधा अंगूठ रे क्वेश्चन पचारा हबनी, से माने सब बळे हातटा मोड़िकी क्वेश्चन पचारिबे। क्लियर? नाउ तो एई जो हमर कनेक्टिव टिश्यू रे आमे दी प्रकार फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाउथिले। कोडा कोडा सेल्स एंड फाइबर्स। मन अछि फाइबर्स रे हमर कोन कोन थिला? कोलाजेन, इलास्टिन एंड रेटिक्यूलिन। हैला तो एडा सब कनेक्टिव टिश्यू रे थिले। तो इन ब्लड देयर आर नो फाइबर्स, एटा मन रखिबो। एटा होची स्पेशल पॉइंट। तो ब्लड जदि कनेक्टिव टिश्यू अछि तो को जिंसटा तार नाही, तो ब्लड रे फाइबर्स न थाए। ओके, एटा ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। In blood there are no fibers. ठीक अछि? So we will find three types of blood cells: red blood cells, white blood cells and platelets. Platelets से मने रखिबो, they are not true cells. देखो एनसीईआरटी बहुत गुड़े मिस्टेक्स रखिची एबे भी। आफ्टर 200 करेक्शंस एनसीईआरटी स्टिल हैज एरर्स। से प्लेटलेट को लिखी देची थ्रोम्बोसाइट। ओके, थ्रोम्बोसाइट। तो प्लीज रिमेंबर, इन ह्यूमंस platelets are not true cells. Therefore, cannot be called thrombocytes. बुझिगला? तो प्लेटलेट टाकू आमे थ्रोम्बोसाइट कहि परिबानी ह्यूमंस रे। अदर ऑर्गेनिजम्स रे मे और मे नॉट, किंतु ह्यूमंस रे खासकर या मैमल्स रे खासकर आमे ताकू थ्रोम्बोसाइट कहि परिबा नाही। काहे की कहि परिबानी बाबानी? Because they are not true cells. They are fragments of large megakaryocyte cells. ହେଇଗଲା? ତ ସେଇ ପାଇଁ ଆମର ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ କହିପାରିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ କହିପାରିବ and platelets କୁ କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ସ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର? ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ଲଡ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ କଣ? ପାଖାପାଖି 95% ହେଇଗଲା ଆରବିସି, around 4.8% ହେଇଗଲା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ and around 0.1% ହେଇଯିବ WBC। ହେଲା? but RBCs एते ହେଇକି ବି ଭ୍ୟାରିଏସନ 0, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ଏତେ ହେଇକି ବି ଭ୍ୟାରିଏସନ 0, କିନ୍ତୁ RBCs WBCs ଆମର 0.1% ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ 5 ପ୍ରକାରର WBCs ଅଛନ୍ତି। ହେଇଗଲା? lymphocytes, monocytes, basophil, eosinophil, neutrophils. Now NEET ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ percentage ଡାଟା ଗୁଡା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି? ତ 20 ରୁ 30% ପାଖାପାଖି lymphocytes ହେଇଯିବେ, monocytes around 3 to 9% ହେଇଯିବେ, basophils less than 1%, eosinophils 1 to 3%, neutrophils 50 to 70%. तो जदि नीट रे क्वेश्चन आसीबो मोस्ट अबंडेंट WBC कोटा, ताले कौन कहबो? तो मोस्ट अबंडेंट WBC कोटा कहबो को न्यूट्रोफिल्स एंड लीस्ट अबंडेंट WBC कोटा कहबो को बेसोफिल्स। हला? चलो, तो दिस इज द बेसिक कंपोजिशन आमे डिस्कस करथिले। तो एबे आमे पळेबा आरबीसीस।
तो देखो दिस इज द डीसी ऑफ ब्लड। तो ब्लड को यदि आमे नहीं कि डीसी कर देबा, डीसी कौन? डिफरेंशियल स्टेनिंग। ओके, इफ यू टेक ब्लड एंड स्टेन इट डिफरेंशियली, तो एई भला नाना प्रकार सेल्स तमे पाइबो। ओके, तो एइथरे आरबीसी देखुच, डब्ल्यूबीसी देखुच एंड प्लेटलेट्स देखुच। इट इज नॉट नंबर। ओके ओके, नंबर एते नहीं, नंबर बहुत एटा खाली तुमको अलग अलग सेल गुडा देखाइছি, नंबर्स को गुरुत्व दिया है नहीं। अदरवाइज ए पूरा स्लाइड रे खाली आरबीसी जी था। बुझल कि आमे कौन डिस्कस करले कि आरबीसी 95% रहउछंती। तो सेई पे एठी नंबर्स टाको देखिबनी, खाली सेल र शेप गुडा को देखिबो। ओके, तार आर डिटेल्स हमें आगे को डिस्कस करिबा। ओके, तो दिस इज योर आरबीसी हे गेला। तो आरबीसी एटा आरबीसी हे गेला। नाउ तो आमे आगे ड्राइंग कर दबा। तो आरबीसी विषय आमे टिके आगे डिस्कस कर दबा। तापरे तो आरबीसी ताकू कौन कुआ जाए? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स या आमे ताकू सेल्स कहिबा। ओके, तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स। अंडरस्टूड? तो ए जो रेड ब्लड सेल्स अच्छी, ओके, दे वर नॉर्मल सेल्स। बहुत टीचर पढ़ाउछंती मु सुनिछि, एंड आई हैव सीन a lot of online videos also। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି आरबीसी इज ए डेड सेल। भूल, या आरबीसी रे किछि नथाए। ओके, ऐसा नहीं। आरबीसीज कैनॉट डिवाइड, कहीं ना तारा न्यूक्लियस नहीं। एमिति भी बहुत जगह सब पढ़ा होची। दीज आर ऑल रॉन्ग थिंग्स। ओके, नो मैच्योर सेल डिवाइड्स हैला। तो हमर सेल रे डिवाइडिंग सेल अलग थाए एंड डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएशन हैला पारे आमे जनरली डिवीजन टाकू हरेई दो हैला। तो सेई पे आरबीसीज वर नॉर्मल सेल्स, तार भी ऑर्गेनेल थिला। ओके, तार भी न्यूक्लियस थिला, तार भी माइटोकॉन्ड्रिया थिला, तार भी गोल्जी बॉडी थिला, तार भी ईआर थिला, सब थिला। बट उद्देश्य कौन आरबीसी रो? टू स्टोर एज मच एज पॉसिबल कौन? हिमोग्लोबिन। तो से हिमोग्लोबिन जेते पारिब स्टोर करियार इच्छुक, काहे कि इट हैज टू हेल्प ईच एंड एवरी सेल इन आवर बॉडी। सो सेई पेई से माने कौन करले? दे लूज सेल ऑर्गेनेल्स हैला। दे लूज सेल ऑर्गेनेल्स। बुझिगला? तो से माने सेल ऑर्गेनेल्स को लूज कर। तो को स्टेज रे? तो रेटिक्युलोसाइट स्टेज। तो रेटिक्युलोसाइट स्टेज of RBCs start losing cell organelles। तो सही पे जो मैच्योर आरबीसी हब, मैच्योर आरबीसीज हैव नो ऑर्गेनेल। ठीक अछि? तो मैच्योर आरबीसीज रे किछि भी ऑर्गेनेल्स न थाए। तो जदि किछि भी ऑर्गन नहीं मैच्योर आरबीसी रे, ताहले कौन करिबा? सो सेई पे इट इज ए हीमोग्लोबिन स्टोर हाउस। तो व्हाट इज एन आरबीसी? इट इज ए हीमोग्लोबिन स्टोर। ठीक अछि? नाउ नाउ एबे हीमोग्लोबिन स्टोर हाउस अछि। एंड एबे जेहेतु तार किछि भी ऑर्गेनेल्स नहीं, सो जेहेतु तार किछि भी ऑर्गेनेल्स नहीं,
It cannot no repair, no regeneration, and anaerobic respiration. Anaerobic respiration. ବୁଝିଗଲା ତ नो रिपेयर नो रिजेनरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन हब ठीक ଅଛି understood plus death is decided ବୁଝିଗଲା ତ ମ୍ୟାଚୁର ସେଲ ମାନେ କଣ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ସିଏ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ଆଉ ଡିଭାଇଡ କରିବାର ଭୁଲି ଯାଇଛି ତ ସିଏ ଡିଭିଜନ କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତ ସିଏ କୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛି କହିଲ छोड़ाए हम वो गलियां ବୁଝିଗଲା ତ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍योर ସେଲ୍ ଗୀତ ଗାଉଛି छोड़ाए हम वो गलियां କୋଉ ଗଲିयां ଡିଭିଜନ ର ହେଲା ତ ସେଇ ପାଇଁ ବହୁତ ଟିଚର୍ସ ପଢାଉଛନ୍ତି ଆରବିସି ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ନାହିଁ ସେଇ ପାଇଁ ଡିଭାଇଡ କରିପାରୁନି ଆରେ ନ୍ୟୁରନ ର ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଅଛି ନା ସେ କାହିଁ ଡିଭାଇଡ କରୁନି मसल ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଅଛି ସିଏ କାହିଁ ଡିଭାଇଡ କରୁନି ତ ଖାଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ थे ତମେ ଡିଭାଇଡ କରିଯିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ରେ ବାବା ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ସବୁ ଅର୍ଗାନେଲ ଦରକାର ହେଲା ସବୁ ବଡ ବଡ କୋଚିଂ ରେ ସବୁ ପଢଉଛନ୍ତି କି ଆରବିସି ଯେହେତु ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ନାହିଁ से डिवाइड କରିପାରିବନି नो ऐसा नहीं है ऑलमोस्ट ऑल मैच्योर सेल्स कैन नॉट डिवाइड बिकॉज दे हैव डिफरेंशिएटेड ସେ ସେଲ ସାଇକେଲ ଛାଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଜି ନଟ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଜି ନଟ୍ କୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଫେରିବାର ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାଉ ଡେଥ୍ ଇଜ ଡିସାଇଡେଡ ମାନେ କଣ ଦ୍ୟାଟ ଆଡଲ୍ଟସ ରେ ଲାଇଫ ଅଫ ଆରବିସିସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 120 ଦିନ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଇନଫାଣ୍ଟସ ରେ या फ्रॉग रे लाइफ ହେଇଯିବ 100 ଦିନ ହେଲା ତମେ କହିବ କି ସାର୍ ଇନଫାଣ୍ଟସ ପିଲାମାନଙ୍କର କାହିଁ କମ କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବେଶୀ ଥାଏ ତ ଯେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବେଶୀ ଥିବ पर मिनिट ବେଶୀ सर्कुलेट କରିବ ବ୍ଲଡ ତ ଯେତେ ବ୍ଲଡ सर्कुलेट କରିବ ଯୋଉ ପତଳା ପତଳା ଗଳି ମାନଙ୍କରେ ଆରବିସି ଯିବେ ତାଙ୍କର ବାଜିବ ଦେହ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ତ ଯେବେ ବାଜିବ ଦେହ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ତ ଆରବିସିସ ରେ ଇଞ୍ଜୁରି ହଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଇଞ୍ଜୁରି ଗୁଡା ରିପେୟାର ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଲେଖିଦେଇଛି ନା नो रिपेयर नो रिजेनरेशन ତ ସେଇ ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆରବିସି ହରେଇଲା ସେଇଟା ସିଏ ହରେଇଲା ଆଉ ଫେରତ ପାଇବ ନାହିଁ ତ ସେଇ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଣ୍ଡ ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନା ତମେ କହିବ ସାର୍ 120 days ମାନେ ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ ଇନ୍ सर्कुलेशन ଯଦି ବ୍ଲଡ ଟା ଚାଲୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଆରବିସିସ୍ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି सर्कुलेटरी ବ୍ଲଡ ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଡେଜ ଆର୍ କାଉଣ୍ଟେड ତ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ କଣ କରେ ଯେବେ କେବେ କେବେ ଆମର ଦରକାର ନଥାଏ ହେଲା ସପୋଜ ଆମର କମ ଆରବିସିସ୍ ଦରକାର ଲେସ୍ ଦେନ୍ ନର୍ମାଲ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ନର୍ମାଲ ମାନେ କଣ ତାହାର ଆମର वी डोंट नीड सम आरबीसी ତ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ତାଙ୍କୁ सर्कुलेशन ରୁ କାଢିଦବ ତ ଯଦି ସ୍ପ୍ଲିନ୍ सर्कुलेशन ର କାଢି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଡେଟ୍ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ अंडरस्टूड तो ସେଇଟା 120 ଦିନରେ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ ତ ବୁଝିଗଲା ତ ସେଇ ପାଇଁ 120 days ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ ନୁହଁ
It is not hard and fast rule. बुझिगला? It can be anything. Okay. बुद्धि बलवंत आमे ब्लड क्लॉटिंग पर डिस्कस करिवा एबे आमे इंट्रोडक्शन करूचे ना बाबा बुद्धि बलवंत बरिहा so we will discuss blood clotting in the last don't worry okay चलो एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग आमर बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक अछि किंतु तम मानक सिलेबस रे एते ब्लड क्लॉटिंग नाही अराउंड 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अछि बट आम माने बेसिकली पांचटा ही यूज करके देखिबा हैला we will not do that complicated intrinsic cycle extrinsic pathway of blood clotting in +2 that is your graduation work that we will do later on but आमे जो ब्लड क्लॉटिंग टा पढ़िबा सेतरे आमे पांचटा फैक्टर्स यूज करिबा हैला डोंट वरी वी विल डिस्कस चलो तो से पे एई जो जिनसोडा आमे बुझिले कि नहीं तो आरबीसीज इंपोर्टेंट पॉइंट कौन बुझिया पे आरबीसीज रा दैट they were normal cells and lost organelle kahinki why they lose organelles to store hemoglobin ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଯେତେ ପାରିବେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ କୁ ହରାନ୍ତି ଖାଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ନୁହଁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେ ୱିଲ୍ ଲୁଜ तो सेई पे बहुत लोग भावती आरबीसी डू नॉट रेस्पायर भाई आरबीसी डू नॉट रेस्पायर ओके बट आरबीसी विल रेस्पायर आरबीसी रेस्पायर करती यस दे डोंट रेस्पायर एरोबिकली कहीं माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं तो सेई पे दे विल रेस्पायर ओनली एनाएरोबिकली हे गला Can anybody tell anaerobic respiration रे पर ग्लूकोज केतिकी एटीपी मिलिबो कैट्री को फटाफट जल्दी को anaerobic respiration रे हमकु केतिकी एटीपी मिलिबो पर ग्लूकोज बी स्मार्ट जल्दी को बाबानी को ओके एक्चुअली 280 बुझ गेला एरोबिक रेस्पिरेशन रे कोन हबो 36 रु 38 एटीपी मिलिबो पर ग्लूकोज यस क्योड कहिची somebody is answering आरबीसी वन मोर टाइम आरबीसी वन मोर टाइम सुना बुद्धि बलवंत कौन बुझिलनी तो आरबीसीज होची रेड ब्लड सेल्स से माने नॉर्मल सेल माने कौन तमर जेमिति सबु ऑर्गेनेल थिला तांकर भी थिला किंतु जेबे से मैच्योर करिया पे आरंभ करले तांकु बॉडी गोटे दायित्व देछि कौन दायित्व देछि हिमोग्लोबिन जेते पारुच रख एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस लाइक O2 CO2 H+ आयन तो सेई पे से कौन करिछि से सबु ऑर्गेनेल र त्याग करिछि ओके तो आरबीसी लूज दी सेल ऑर्गेनेल in order to accommodate maximum hemoglobin हैला को स्टेज रे से हरैला that is called reticulocyte stage तो रेटिकुलोसाइट स्टेज रु सीए सबु ऑर्गेनेल हरैबा पे आरंभ करिदेला एंड मैच्योर आरबीसी रे किछि भी ऑर्गेनेल्स न थाए अंडरस्टूड तार दायित्व होची ऑक्सीजन CO2 एंड H+ आयंस को ट्रांसपोर्ट करी ठीक अछि तो सेबे लाइफ ऑफ एडल्ट्स केते 120 दिन इन्फेंट्स ऑफ फ्रॉग रे लाइफ केते 100 दिन काहे की इन्फेंट्स रे 100 दिन
କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର circulation ଟା ବେଶୀ ଥର ହୁଏ because their heartbeat is faster. They are metabolically more active, more needy of energy. ତେବେ ସେମାନେ ବେଶୀ circulation କରନ୍ତି। ତ ଯେବେ ବେଶୀ circulation କରିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତମର ବେଶୀ ଥର RBC will move and ଯେତେ ସେମାନେ move କରନ୍ତି ତାଙ୍କର injuries ହୁଏ and injuries ହେଲେ ତାଙ୍କର repair regeneration ହୁଏ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କିଛି organelles ନାହିଁ। So no repair, no regeneration, it will die one day. ବୁଝିଗଲ? So this is the case. ଚାଲ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କୁ ଯିବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେବା ଆମେ। ତ ଏବେ ଏଇ ଦେଖ ତ କଲର ତ why RBCs is red in color? ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି RBCs ରେ କଣ ଥାଏ? RBCs ରେ ଥାଏ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ। ଓକେ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ। ନା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ is a conjugate protein। ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ non protein part ଥାଏ that is called heme and ଗୋଟେ protein part ଥାଏ that is called globin। तो hemoglobin ରେ ଚାରୋଟି heme part ଥାଏ and ଗୋଟେ globin ଥାଏ। तो globin is made up of 2 alpha proteins and 2 beta proteins। alpha protein ରେ 141 ଟା amino acid ଥାଏ and beta protein ରେ 146 ଟା amino acid ଥାଏ। so total କେତେଟା ହେଇଗଲା? 574 amino acid rest। ବୁଝିଗଲ? ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ଲୋବିନ ପାର୍ଟ ଅଫ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ରେ ଗୋଟେ ଟେଟ୍ରାମେରିକ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ that is called globin। तो अल्फा 2 एंड बीटा 2 दीटा अल्फा चेन अच्छी एंड दीटा बीटा चेन अच्छी। क्लियर? अल्फा चेन रे 141 टा अमीनो एसिड थाए, बीटा चेन रे 146 टा अमीनो एसिड थाए। नाउ हिम रे आमर आयरन थाए को स्टेज रे Fe+2। तो जेहेतु आमर चारोटी हिम अच्छी आमर चारोटी Fe+2 आयन थिबो। तो जेहेतु आमर चारोटी Fe+2 आयन अच्छी O2 केतेटा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसफर ହେଲା बाय हिम। बुझिगल? तो से ऑक्सीजन जाए हिम सांगरे एंड कार्बन डाइऑक्साइड जाए ग्लोबिन सांगरे। तो सेई पई आमर गोटे आरबीसी ओके तो 1 आरबीसी ए कौन मुझे सॉरी 1 हिमोग्लोबिन हैला। तो 1 हिमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 4 oxygen when fully saturated हैला and 1 CO2 okay when fully saturated। ओके एटा आमे और लिखि देबा 4 oxygen और 1 CO। कहना ऑक्सीजन लोडिंग हेले CO2 को अनलोड करिवो एंड CO2 को लोड करले ऑक्सीजन अनलोडिंग हबो। से माने परस्पर को रिपेल करिवे। बुझिगला? ऑक्सीजन जाए कहा संगरे? हिम संगरे। CO2 जाए कहा संगरे? ग्लोबिन संगरे। तो जेहेतु आमर चारोटी हिम अछि आमे चारोटी ऑक्सीजन नहीं पारिबा when fully saturated and ग्लोबिन आमर गोटे CO2 को नहीं किछि। ठीक अछि? तो सही पे दिस इज द कंसेप्ट। तो नीट रे क्वेश्चन आसीबो हिमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन को कौन कुआ जाए? हिमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कुआ जाए?
हिमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोक्साइड को कौन कुआ जाए ना प्लीज रिमेंबर आउट ऑफ दिस थ्री हिमोग्लोबिन रो फर्स्ट लव किए एटा होची फर्स्ट लव कार्बन मोनोक्साइड तापरे आंक भितरे ऑप्शनल अछि जोटा बेसी मिलिबो बुझिगला तो से सबुठ बेसी भल पाए कार्बन मोनोक्साइड एंड दैट इज ट्रू लव आमे कौन जानिचे ट्रू लव रे कौन हब यू विल डाई बुझिगला तो ट्रू लव वी फॉल इन लव आमे कहूछु कि नहीं आमे लव करले फॉल हे जाउछु तो सही भलिया हिमोग्लोबिन भी सीओ को बहुत भल पाए तो सीओ ताकू जम्मा छाड़िबो नाही तो दैट इज एन इरिवर्सिबल बॉन्डिंग but carbon dioxide and oxygen are reversible bonds and carbon dioxide ଲାଗିଲେ oxygen କୁ କାଢିବ oxygen ଲାଗିଲେ carbon dioxide କୁ କାଢିବ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ରିଲେସନ ଅଛି जो ज्यादा मिल गया दैट इज कॉल्ड छतापाटी तो ऑक्सीजन बेसी मिलिले ऑक्सीजन आनिबा CO2 बेसी मिलिले CO2 आनिबा किंतु सबुठ बेसी चाहे सीए कार्बन मोनोक्साइड को तो कैन एनीबॉडी टेल तो व्हाट वी आर दे कॉल्ड ऑक्सीजन प्लस हिमोग्लोबिन के कहबा फटाफट चैट करा व्हाट इज ऑक्सीजन प्लस हिमोग्लोबिन व्हाट इज ऑक्सीजन CO2 प्लस हिमोग्लोबिन एंड व्हाट इज CO प्लस हिमोग्लोबिन हाँ CO will also go with him so please remember CO will move with him and oxygen will move with him CO2 will move with globin तो सेई पे बहुत लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कौन कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीजन गलत तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीजन because they don't bind to the same active site बुझला किंतु कार्बन मोनोक्साइड हिम को भल पाए ऑक्सीजन भी हिम को भल पाए तो से कार्बन मोनोक्साइड इज ए कौन कार्बन मोनोक्साइड इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ है तो एटा कहि पारलनी तम माने चुपचाप बसछ तो ऑक्सीजन हेले एटा कोन हे जीवो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड लागिले कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड कार्बन मोनोक्साइड लगिले दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सी हेला सो दिस इज अनदर पॉइंट तापरे आमे डिस्कस करिबा शेप शेप इन मैमल्स होची कोन तो मैमल्स मानकर शेप होची ओवल बाई कॉनकेव ताकू डिस्क शेप कुहा जाए डिस्क शेप हैला नहले डोनट शेप हमर ओडिया रे कहले बरा शेप बरा रे जेमती कोणा थाए से बेला तार गोटे खापटे थिबो तो कोणा न थाए बट थिके खापटे थिबो आ so that is why the shape in mammals is oval biconcave and disc shape now there is no nucleus तो नो न्यूक्लियस को कौन कुआ जाए ई न्यूक्लिएटेड हैला तो आरबीसीज आर कॉनकेव ई न्यूक्लिएटेड हैला किंतु गोटे एक्सेप्शन अछि मैमल्स रे दैट इज द कैमेल फैमिली तो कैमेल रे देखि दबो या कैमेल रे हमर कोन आसी जाउची वन हम्प कैमेल टू हम्प कैमेल एंड गोटे साउथ अमेरिकन कैमेल रे भाई अछि दैट इज कॉल्ड लामा इसे पे एई जो कैमेल फैमिली रे तो एरा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट इन कैमेल्स the RBCs are
convex. But nucleus तो नहीं, enucleated. ঠিক আছে, RBCs are biconvex, enucleated. ହେଲା? other organisms रे it is biconvex and nucleated. ତାଙ୍କର nucleus ଥାଏ, mammals ମାନଙ୍କର nucleus ନ ହେଲା। ଚାଲ ସାଇଜ କେତେ, ତ ଡାୟାମିଟର ଟା ପାଖାପାଖି 7 ମାଇକ୍ରନ and thickness ଟା ପୁରା ସବୁଠୁ ଠିକ ଜାଗା ଅଛି ପାଖାପାଖି 2 ମାଇକ୍ରନ ହେଇଗଲା। So diameter of RBC, human RBC is 7 micron and thickness is around 2 micron at the thickest place ହେଲା। तापर शेप हमें डिस्कस कर दीजिए। कलर, तो इंडिविजुअल आरबीसीज ର କଲର ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଏଟା ହଉଛି yellow। तो इंडिविजुअल आरबीसी ର କଲର ହଉଛି yellow, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, when stacked ମାନେ କଣ, ଥାକେଇବା। when stacked ମାନେ ଆମେ numerous RBCs କୁ ଥାକେଇ ଦବା, तो this is called a rouleau ହେଇଗଲା। So when RBCs are stacked on one another, that is called a rouleau। तो ସେଇ ପାଇଁ in case of ଆମର जो क्वेश्चन ଥିଲା that individual RBC ର କଲର କଣ, yellow। तो when stacked as a rouleau it gives red color। ବୁଝିଗଲା? ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆରବିସି ର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆରବିସି ର ରଙ୍ଗ ହଉଛି yellow। ବଢିଆ। ହେଲା? ओके, तो साइज ହେଇଗଲା ଆମର 7 ମାଇକ୍ରନ ଡାୟା, thickness 2 ମାଇକ୍ରନ, कलर इंडिविजुअल रे येलो, ଥାକେଇକି ରୁଲ କରିଦେଲେ ରେଡ, शेप आमे डिस्कस करते बाइकनकेव एंड इन्यूक्लिएटेड। ठीक अच्छी। नाउ नंबर देखिबा, तो एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ आरबीसीज ताकू कैलकुलेटेड यूजिंग को मेसिन, एटा बहुत इंपोर्टेंट, एटा आधा पिला जाने नांती, दैट इज कॉल्ड न्यूबॉर, एटा पैटेंटेड हिमोसाइटोमीटर हैला। न्यूबॉर हिमोसाइटोमीटर यूजिंग red bead pipette and RBC counting chamber ହେଇଗଲା। तो रेड बीड पिपेट एंड आरबीसी काउंटिंग चैम्बर, ताकू मन रख हिमोसाइटोमीटर कहा जाए ना। आई विल शो यू द हिमोसाइटोमीटर। तो ये देख, एटा होची हिमोसाइटोमीटर, एटा गोटे डबाटे, एइथरे गोटे नालिया बीड देखुछ, एठी एइथरे नालिया बीड अछि, एइथरे धळा बीड अछि। तो दी प्रकार रो पिपेट अछि। तो नालिया बीड टा आरबीसी काउंटिंग रे यूज हुए एंड धळा बीड टा डब्ल्यूबीसी काउंटिंग रे यूज। क्लियर? नाउ एई जो पिपेट अछि हैला, एइथरे हमें ब्लड को सक करबा, ताकू डाइल्यूट करकी एई स्लाइड रे पकेबा। तो ये जो स्लाइड देखुच से ये चैम्बर अच्छे। ओके, नाउ ये जो मझी चैम्बर टाकू कहा जाए आरबीसी काउंटिंग चैम्बर, ए बाहर चैम्बर गुड़ा कहा जाए डब्ल्यूबीसी काउंटिंग चैम्बर। तो एटा होची 1 मिलीमीटर, एटा होची 1 मिलीमीटर एंड कवर स्लिप पके देले 0.1 मिलीमीटर उच्च हाइट। तो लेंथ 1 मिलीमीटर, ब्रेड्थ 1 मिलीमीटर, हाइट इज 0.1 मिलीमीटर। तो से पे हमें जब कैलकुलेशन करवा इंटू 10 कर दवा,
ताले लेंथ भी 1, ब्रेथ भी 1, हाइट भी 1 ହେଇଯିବ। तो दैट इज व्हाई आमे डाटा कौन दउचु पर मिलीमीटर क्यूब। तो हमर केते आरबीसीज अछि 5 ରୁ 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। तो मिलीमीटर क्यूब को हमें कहवा कौन दैट इज कॉल्ड माइक्रोलीटर ହେଇଗଲା। तो जदि आमे मिलीमीटर मीटर भाषा रे नेबा एडा हबो मिलीमीटर क्यूब। जदि लीटर भाषा रे नेबा दैट इज कॉल्ड माइक्रोलीटर। बुझिगला। तो देखो एते देखैछि आमे जो कवर स्लिप पकेले एटा कवर स्लिप टा तो एई उच्चा केते हे गेला 0.1 मिलीमीटर। तो सेई पे एकड़ 1 हाइट 0.1 तो आमे इनटू 10 कर देले कोन हबो तीनटा का 1 मिलीमीटर हे जिवो एंड दैट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। ठीक अछि। नाउ मजा कथा कोन डब्ल्यूबीसी काउंटिंग चैम्बर रे तमर कोन तो डब्ल्यूबीसी काउंटिंग चैम्बर रे तमर 16 सीएफ रे आ डिटेल देखे दछु मु এই দেখো এটা দেখুছ তো in the WBC counting chamber there are 16 boxes ହେଇଗଲା। ତ WBC काउंटिंग चैम्बर रे 16 boxes थिले बट RBC काउंटिंग चैम्बर रे 16 into 25 that is 400 boxes ଅଛି। ତ ଆମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇଟା କାହିଁକି କରିଲେ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ 16ଟି ଚେମ୍ବର ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିପାରିବାନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ଅଛି ତମର ଗୋଟେ ଚାମ୍ବରରେ 50ଟା 30ଟା ସେଲ୍ ଅଛି ତମେ ଗଣିଦବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 5000ଟା ସେଲ୍ ଥିବ ତ 5000ଟା ଯଦି ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବରରେ ଅଛି ତାହେଲେ କୋଉଟା ଗଣିଲ କୋଉଟା ଗଣିଲନି କେମିତି ମନେ ରହିବ। तो सेई पे आमे कौन करूचु आरबीसी चैम्बर टाकू पूरा आग 16 हिस्सा तापर ईच चैम्बर को आउ थरे 25 हिस्सा रे भांगी दउ। तो दैट इज 16 into 25 तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर रे डब्ल्यूबीसी 16 टा चैम्बर थाए एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर रे आरबीसी 100 16 into 24 that is 24 400 चैम्बर ହେଇଗଲା। सो दैट इज बाय बिकॉज आमर डब्ल्यूबीसी केते 6000 रु 10000 माने एंड आरबीसी होची मिलियन माने 100 गुणा बेसी। तो सेई पे आमे सेटा करूचे प्लस डब्ल्यूबीसी टा तमर 40x मैग्निफिकेशन रे गणी परिबो किंतु आरबीसी पे 40 रु 100x मैग्निफिकेशन नेबा पे पड़िबो हला। तो लाइक दिस तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ हीमोसाइटोमीटर। तो सेई पे आमे कैलकुलेट कर देले हीमोसाइटोमीटर नाउ। तो नॉर्मल काउंट एडा इंपोर्टेंट एडा सी तो नॉर्मल काउंट होची केते तो मेल रे 5 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब एंड फीमेल रे 4 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। तमे ता जगह रे माइक्रोलीटर भी नहीं पारिबो हेला किसी असुविधा नहीं। किंतु एबे रोग डिस्कस करिबा डेफिशिएंसी तो कौन कुआ जीव एनेमिया ହେଇଗଲା। तो डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज को आमे कौन डेफिशिएंसी सॉरी सॉरी एटा हीमोग्लोबिन तो रुह डेफिशिएंसी को आमे कौन कहबा तो डेफिशिएंसी को कुहा जीव कौन डेफिशिएंसी हे गला एक्सेस हे गला एबनॉर्मल एक्सेस हे गला। तो डेफिशिएंसी हेले कौन कुहा जीव एरिथ्रोसाइटोपेनिया हैला। तो साइटोपेनिया होची कमी
ହେଲା। ତ ଯଦି ଆରବିସି ର କମି ଅଛି that is called ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟୋପିନିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଏକ୍ସେସ କୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟୋସିସ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଆବନର୍ମାଲ ଏକ୍ସେସ କୁ କୁହାଯିବ ପଲିସାଇଥେନିଆ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇସବୁ ନିଟ୍ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଇଭେନ ତମର ସ୍କୁଲରେ ବି କଲେଜରେ 1 ମାର୍କ ର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆରାମ ସେ ଆସିବ। ତ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହଉଛି ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟୋପେନିଆ, ଏକ୍ସେସ ହଉଛି କଣ ଏକ୍ସେସ ହଉଛି ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟୋସିସ ଆଣ୍ଡ ଆବନର୍ମାଲ ଏକ୍ସେସ ହଉଛି ପଲିସାଇଥେନିଆ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ହିମୋସାଇଟୋମିଟର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ହିମୋମିଟର ହେଲା। ହିମୋମିଟର, ତ ହିମୋମିଟର ବ୍ଲଡ ଚେକ୍ କରିବ। ସାଇଟୋ ମାନେ ସେଲ, ହିମୋସାଇଟୋମିଟର ବ୍ଲଡ ସେଲ ର ଗଣତି କରିବ। ତ ହିମୋମିଟର କଣ ଚେକ୍ କରିବ? ଇଟ ୱିଲ ଚେକ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ହେଲା। ଆମର ରକ୍ତରେ କେତେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ। ଆମେ ପିପେଟ ତାର ଦେଇଥିବ, ତାର ପିପେଟ ରେ ଆମେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଟାକୁ ବ୍ଲଡ କାଢିବା। ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ମାର୍କିଂ କରାଇଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏମିତି ମାର୍କିଂ କରାଇଛି। ତ ସେଇ ଟ୍ୟୁବ ରେ ଆମେ 1 ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବା ବ୍ଲଡ, ତାକୁ ଆମେ n/10 HCl ରେ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବା ହେଲା। ଡିଜଲ୍ଭ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦବା। ତ ଯେବେ ତମେ n10 HCl ପକେଇବ ବ୍ଲଡ ରେ, ତ ଏସିଡ ହିମାଟିନ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେବେ। ବୁଝିଗଲ? these crystals are called acid hematine crystals। ତ ଯେବେ ତମକୁ ଆସିଡ ହିମାଟିନ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ସ ମିଳିବ, ଓକେ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଟିକେ ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ କଲର। ଦେଖୁଛ ତାର ସାଇଡ ରେ ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ ଟ୍ୟୁବ ଗୁଡା ଅଛି। ତ ଆମେ କଣ, ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ ଅଛି, ମଝିରେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଟା ପକା ହବ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ରକ୍ତ ନେଇଛେ, ଯୋଉ ଆମେ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟର ଦେଇଛେ ଏଇଥିରେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ କରିବ। ତ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ କରିକି ଯେବେ ତିନିଟା ଯାକର କଲର ସେମ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟାକୁ ନିଆଯିବ। so that is called ହିମୋମିଟର ହେଲା। ତ ହିମୋମିଟର କଣ ହେଲ୍ପ କରେ? it helps to what? it helps to make କଣ, it helps to check hemoglobin ହେଲା। ତ ନର୍ମାଲ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କାଉଣ୍ଟ କେତେ କହିଲ? ତ ନର୍ମାଲ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କାଉଣ୍ଟ କେତେ? ତ ମେଲ ରେ 14 ରୁ 16 ଗ୍ରାମ per 100 ml ବ୍ଲଡ। ସେଇଭଳିଆ ଫିମେଲ୍ସ ରେ 11 ରୁ 13 ଗ୍ରାମ per 100 ml। ଏଇଟା ବହିରୁ ବହି ଭ୍ୟାରି କରିବ, ଏତେ ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଜାଣିବ ମେଲ୍ସ ରେ ଫିମେଲ ଟୁ ଯେତେ ହେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଥାଏ। ଓକେ, ନାଉ ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆନ୍ସର କରିବ। will you answer questions? କହିଲ, which is the most abundant cell in blood? one ର ଆନ୍ସର କୁହ ABCD। ଓକେ, nobody will answer। ଚାଲ ତ ତାହେଲେ ଆମେ ପଳେଇବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା
WBC। तो WBC ର ମାନେ କଣ? White blood cells या white blood corpuscles। ତ ଏମାନେ ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ସ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅର୍ଗାନେଲ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ନଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ନଥାଏ ଦେ ଆର୍ କଲରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହେନ୍ସ କଲ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ। ଠିକ ଅଛି। ଏମାନେ ସୈନିକ, ଦେ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ ଆୱାର ବଡି। ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସୈନିକର ଜୀବନ କେତେ ଦିନ? ଯେବେ ଗୋଟେ ଗୁଳି ଖାଇବ ହେଲା। ଯୋଉ ଦିନ ଗୁଳି ବାଜିଲା ସେଦିନ ମୃତ୍ୟୁ। ତ ସେଇପାଇଁ ସର୍କୁଲେସନ ରେ ଯଦି ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେଟ କରୁଛି, WBC ସେଇଥିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ 1 ରୁ 15 ଦିନ ହେଲା। ବଟ୍ ଯଦି ରେଷ୍ଟ ରେ ଅଛି, ରିଜର୍ଭ ରେ ଅଛି, ସେ 100 ଦିନ ପାଖାପାଖି ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ସର୍କୁଲେସନ ରେ WBC ର ଲାଇଫ ହଉଛି 1 to 15 days। कंपेरेटिव टू आरबीसी WBC कम थाए पर मिलीमीटर क्यूब 6000 ରୁ 8000, जबकि आरबीसी केते थिला हमर मिलियन ହେଲା कि नहीं, माने अराउंड तमर केते अराउंड तमर 100 गुण बेसी थिबो आरबीसी ହେଲା। नाउ एई जो WBC तैयारी कोठी हुए, बोन मैरो रे हुए एंड मैच्योर कोटी हब, बोन मैरो रे मैच्योर हेई पारे, ताले सेमानकु बी सेल्स कुआ जीवो एंड जो बी लिम्फोसाइट्स, एंड जदि थाइमस रे मैच्योर करिवो ताकु कुआ जीवो टी लिम्फोसाइट हैला। नाउ एई जो WBC गुडा अछंती तांकर दी प्रकार रो सेल्स अछि एंड टोटली देयर आर 5 टाइप ऑफ WBC। आमे देखुचे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ए तीनटा जाकरे साइटोप्लाज्मिक देखुछ ना ग्रान्यूल्स अछि। ए जो डट 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 देखुछ एडा होची साइटोप्लाज्मिक ग्रान्यूल्स। से पे आंकु आमे कोन कहिबा? ग्रान्युलोसाइट्स। आंकर ग्रान्यूल नाही एई दिटा लिम्फोमोनरे, तो तांको कोन कुआ जीवो? ए ग्रान्युलोसाइट। ठीक अछि। तो आरबीसी कौन तमर लिम्फोसाइट मोनोसाइट होची ए ग्रान्युलोसाइट, तमर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल होची ग्रान्युलोसाइट हैला। तो न्यूट्रोफिल, मोनोफिल, बेसोफिल जो माने तांकर कलर जोटा ग्रान्यूल रो इट इज डिसाइडेड बाय स्टेनिंग हे गला। तो आमर बेसोफिल रे मेथिलिन ब्लू स्टेन निए, मेथिलिन ब्लू। तो सेई पे से ग्रान्यूल गुडा होची ब्लूइश कलर हे गला। तो तमर जो बेसोफिल्स रे तमर कोन ब्लू कलर ग्रान्यूल्स थिबो। बट इओसिनोफिल रे कोन अछि? इओसिन होची गोटे एसिडिक डाई। इओसिन इज एसिडिक हे गला। तो इओसिन होची एसिडिक। तो जदि इओसिन ता एसिडिक अछि तो सेई पे सिए आमर ताकू एसिड इओसिनोफिल को आमे एसिडोफिल भी कहि पारिबा हैला। We can also call them acidophils and they give red color granule हैला। They give red color granule ठीक अछि। तो तेबे स्टेन लविंग सेई पे ता फिलेन, फिलेन रो नाम नाटा केमति पडला? फिलेन माने होची लव हैला। फिलेन रो माने होची लव। तो न्यूट्रल डाई को जे भलो पाइबो न्यूट्रोफिल, एसिडिक डाई इओसिन को जे भलो पाइबो एसिडोफिल,
नहले इओसिनोफिल। मेथिलीन ब्लू बेसिक डाई ताकू जे भल पाइबो से होची बेसोफिल हैला ना। आउ गोटे डिफरेंस कौन तमर जो ग्रान्युलोसाइट्स मानकरे मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस अछि माने न्यूक्लियस रे मोर देन वन लोब अछि हैला किंतु जो ए ग्रान्युलोसाइट्स तांकर माने न्यूक्लियस गोटे there is only one nucleus and there is no कौन no lobes ठीक अछि। तो इओसिनोफिल रे देखुछ तमे दीटा लोब अछि बेसोफिल्स रे तीनटी लोब अछि एंड न्यूट्रोफिल रे चारटा रु बेसी लोब थाई पारे 4 और मोर हला। किंतु लिम्फोसाइट रे गोटे ही न्यूक्लियस अछि विराट बड़ almost occupying the entire cell volume and तमर जो कौन मोनोसाइट रे तमर विराट बड़ किडनी शेप न्यूक्लियस हैला। one spherical nucleus in lymphocyte which covers almost entire cell volume and one large kidney shaped nucleus in monocytes। तो एडा होची तमर डब्ल्यूबीसी हैला। तो फंक्शन कौन करंती डब्ल्यूबीसी डिफेंस रे फंक्शन कर हैला। नाउ एथर फंक्शन दिया जायची तो न्यूट्रोफिल्स कौन करिवे दे आर फैगोसाइट्स से माने गिली जीवे पैथोजेन मानकू या डेड सेल्स को दे विल क्लीन ईट अप तो से पे दे आर द लार्जेस्ट माने मोस्ट न्यूमरस फैगोसाइट हमर जति की फैगोसाइट अछि हम बॉडी रे सबुट बेसी कोटा न्यूट्रोफिल हला। इओसिनोफिल कौन करिवे से माने एंटी एलर्जिक से माने इन्फ्लेमेशन टाकू सप्रेस करिवे हैला। सो दे सप्रेस इन्फ्लेमेशन किंतु बेसोफिल कौन करिवे से माने इन्फ्लेमेशन को कॉज करिवे। तो बेसोफिल आर रिलीजिंग कौन हिस्टामिन हेपारिन एंड सेरोटोनिन। हेपारिन टा कौन एंटी कोआग्युलेंट से रक्त टाकू जमी दबनी। हिस्टामिन कौन वैसो डाइलेटर से ब्लड वेसल्स को डायलेट करिवो। सेरोटोनिन कौन वैसो कंस्ट्रिक्टर से ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर क्लियर। सो दिस इज द कंसेप्ट हियर तापरे हमर ए तीन जण मिसिकी कौन करिवे इन्फ्लेमेशन करिवे। तो एटा मन रख एटा टिके कंफ्यूजिंग बेसोफिल इन्फ्लेमेशन करिवो एंड इओसिनोफिल इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करिवो हेगला। बेसोफिल इन्फ्लेमेशन करिवो इओसिनोफिल इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करिवो क्लियर। तो दीज आर इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट तांकर काम अलगा दे आर ए पार्ट ऑफ मोनोसाइट भी हमर फागोसाइटोसिस करूची। तो आमे कौन डिस्कस करथिले यार गोटे न्यूक्लियस अछि वन न्यूक्लियस आर 4 और मोर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लोब्स। तो सेई पे आंकर ना अलगा कौन कौन ना दिया जायछि बाबा आंकु कुहा जाए पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर फैगोसाइट्स किंतु मोनोसाइट को कौन कहा जाउछि मोनो मॉर्फो न्यूक्लियर फैगोसाइट्स ठीक अछि। तो बेस ऑफ मोनोसाइट होछि मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर एंड न्यूट्रोफिल होछि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर क्लियर। तापरे जो हमर लिम्फोसाइट्स अछन ए लिम्फोसाइट्स माने दी प्रकार को आधार रे कोठी मैच्योर करिवे हैला। तो जो लिम्फोसाइट बोन मैरो रे मैच्योर करिवो
ताकू कुहा जाउची बी लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट थाइमस जाइकी मैच्योर करिवो ताकू कुहा जाउची टी लिम्फ। बुझिगला? तो बी lymphocyte and T lymphocyte, so they play a role where they help in your immune system. ହେଲା? Immune action रे काम करंती। B lymphocyte are a part of antibody mediated immune system. T lymphocytes are a part of cell mediated immune system. ହେଇଗଲା ଆଙ୍କର ଡିଟେଲ ଆମେ ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ରେ ବି ପଢିବା କ୍ଲାସ 12 ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ ନା ଦିସ୍ ଇଜ योर ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ। तो प्लेटलेट्स को एनसीईआरटी लेखुची थ्रोम्बोसाइट, बट आमे कौन डिस्कस करले कि जेहेतु दे आर नॉट ट्रू सेल्स आमे ह्यूमंस रे थ्रोम्बोसाइट कहिबा नहीं। दैट इज ए मिस्टेक। We will only call them what? Platelets. They are made from large megakaryocyte cells. देखिला ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟେଡ୍ ସେଲ୍ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ୍। ତ ସେମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ବଡ ମେଗା କ୍ୟାରିଓସାଇଟ୍ ସେଲ୍ ତାର ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡା। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ତ ଦେ ଆର ବେସିକାଲି 1.5 to 3 lakh पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक अच्छी। तो ता नंबर टा होची अराउंड 1 ରୁ 2 लक्ष। तो आरबीसीज होचंदी मिलियन, एटा होची लक्ष। ता माने प्लेटलेट्स गुडा 10 टाइम लेस देन आरबीसी हैला। प्लेटलेट्स मझी मझी रे 10 टाइम्स मोर देन डब्ल्यूबीसी, 10 टाइम्स लेस देन आरबीसी हैला। and ताकर मदद कोन? दे हैव प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग हैला। तो सेइथरे थ्रोम्बोप्लास्टिन थाए जोटा की क्लॉटिंग फैक्टर 3, तो इट विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक अच्छे। तो देखो एटा होची हमर ब्लड क्लॉटिंग रो स्टेप गुडा। तो ब्लड क्लॉटिंग स्टेप रे कौन हबो? इंजरी जोठी हेची सेठी कौन हबो? प्लेटलेट्स पळे आसीबे एंड गोटे प्लग भलिया तयारी करिवे। दैट विल रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन व्हिच इज कॉल्ड फैक्टर नंबर 3। सी कौन करिवो? थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम तयारी करिवो। ताकू जदि हमें कैल्शियम दबा एंड से कौन करिवो? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन रे कन्वर्ट कर दो। तापरे थ्रोम्बिन कौन हबो? से फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन रे कन्वर्ट कर। क्लियर? नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, तो आमे थ्रोम्बोप्लास्टिन को फैक्टर 3 लिखिबा। ओके। प्रोथ्रोम्बिन होची इनएक्टिव फैक्टर 2 एंड थ्रोम्बिन होची एक्टिव फैक्टर 2 हेला। तो फाइब्रिनोजेन हे जीवो कोन? इनएक्टिव फैक्टर 1, फाइब्रिन होची एक्टिव फैक्टर 1। तापरे से माने क्लॉट टा तयारी करिवे एंड क्लॉट को स्टेबलाइज करिया पे आपको फैक्टर 13 भी दो। क्लियर? तो से पे एटा होची सिंपल ब्लड क्लॉटिंग स्टेप जोड़ा +2 रे थाए। इट इज यूजिंग कैल्शियम। कैल्शियम टा होची फैक्टर 4। बुझिगला? तो आमे एटी फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4 एंड फैक्टर 13 यूज करू। तो बाकी सब फैक्टर रो रेगुलेटरी रोल अछि। सेटा जदी हम माने हायर क्लासेस रे पढिबा इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो सेई दीटा रे सेटा सब पढा। क्लियर? तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। तो ब्लड कोआगुलेशन कौन करूची? इट हेल्प्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड। तो जदि इंजरी हेची तो ब्लड टा लॉस करिया पे से दौनी, तो सेई पे पर्सन सर्वाइव करिवो। जदि ब्लड लॉस हे गला तो पर्सन विल डाई।
ओके व्हाई पर्सन विल डाई कहि परिबो ब्लड लॉस हेले पर्सन काई मरि जाय कहना तार ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आउ हबो नाही क्लियर अंडरस्टूड so this is something that we will read as blood as a connective ठीक ଅଛି चलो so that is all for the first class ठीक ଅଛି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ତମମାନେ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଏ ସବୁ କ୍वेଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଡିସ୍କସ କରିଥାନ୍ତି and this is hemoglobin structure तो hemoglobin structure ପାଇଁ नोबेल प्राइज दिया जायछि काहाकू जॉन केंड्रू and Max Perutz they shared the Nobel Prize in 1962 and they were given Nobel Prize in chemistry तो सब बायोलॉजी रो मजा कौन आमे मेडिसिन फिजियोलॉजी रो भी नोबेल प्राइज पाउछु एंड केमिस्ट्री रो भी नोबेल प्राइज ठीक अछि so Kendrew and Perutz they were awarded Nobel Prize for the discovering the structure of hemoglobin as well as myoglobin ठीक अछि चलो so that is all for today फर्स्ट क्लास आमे एबे ब्रेक नबा 9टा बाजी गलानी तो तम माने टिके ब्रेकफास्ट करो फ्रेश हो जाओ तमे फ्रेश ना होली आजिकली आज आंसर किछि करलनी दुख लागिला गत क्लास रे कोन करथुलो ओके so now we will continue our discussion and aji au gode connective tissue ame पढिबा that is called bone and cartilage ठीक अछि तो आज जो दीटा का टिश्यू आमे पढिले तार जो यूनिकनेस अछि जनरल कनेक्टिव टिश्यू रु टिके एटा अलगा काहे अलगा को काहे के ना आमे कौन देखिले बोन एक ब्लड रे कौन देखिले सेथरे मैट्रिक्स कौन सबुडु बेसी अछि एंड सेही पई ब्लड ता कौन होउची लो करूची जेहेतु मैट्रिक्स इज मोर ब्लड इज फ्लोइंग किंतु बोन कार्टिलेज रे कौन देखिबा एइथरे मैट्रिक्स ता डेंस आउ सेथरे डिपोजिशन ऑफ आयंस अछि हे गला तो आयोनिक डिपोजिशंस अछि तो आयोनिक डिपोजिशन से ले कौन हबो द मैट्रिक्स विल बी हार्ड एंड सेही पे बोन टाकू आमे हार्ड टिश्यू रे गणु एंड दैट इज कॉल्ड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हैला कि नहीं तो बोन आउ कार्टिलेज आसी जीवो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू रे एंड तमर जो कौन ब्लड आउ लिम्फ आसी जीवो हमर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू रे तो सेही पे these are also referred to as special connective tissue can they don't show general properties of connective tissue they show some special properties of connective tissue बुझिला तो देखा एटा बढ़िया गोटे फसिल बोन देखैछि मु फसिल टे एंड एटा से बोन रो स्टडीज करा होछि हो गया so now we will study the different types of bones तो लॉन्ग बोन्स कोठी तो लॉन्ग बोन्स माने से माने लंबा से कोठी पाइबो तमे हमर जो ह्यूमरस रेडियस अल्नस जेति के हमर लिम्ब बोन्स अछि हैला तो लिम्ब बोन्स रे जो लंबा लंबा बोन्स हमर कोन कोन आसी जीवो तो लॉन्ग बोन्स रे हमें कोन कोन लिखि दबा तो इधर लिखि दबा ह्यूमरस रेडियस अल्नस फीमर टिबिया एंड फिब्यूला बुझिगला एबडा सब हमर कोन हे जीवो एबडा सब हमर लॉन्ग बोन्स देखु जो एडा होची ह्यूमरस रेडियस अल्नस
ଫିମର, ଟିବିଆ ଆଣ୍ଡ ଫିବୁଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାଡରେ ଆମର ଗଣାଯିବ। ସର୍ଟ ବୋନ୍ସ ରେ ରିଷ୍ଟ ବୋନ ହେଇଗଲା, ଆଙ୍କଲ ବୋନ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ସର୍ଟ ବୋନ୍ସ ରେ ଆସିବ। ଫ୍ଲାଟ ରେ ତମର ଏଟା ସ୍କଲ ବୋନ୍ସ ହେଇଗଲା, ତମର ପେଲଭିକ ଗର୍ଡଲ ହେଇଯିବ, ହିପ ଗର୍ଡଲ, ଏମାନେ ହଉଛି ଫ୍ଲାଟ ବୋନ୍ସ। ଇରେଗୁଲାର ବୋନ୍ସ ତ ଗଦାଏ ବୋନ ଆସିବେ, ତମର ଭର୍ଟିବ୍ରା ଆସିଯିବ, ଫେସିଆଲ ବୋନ ଆସିଯିବ, ଓକେ, ଫେସ୍ ଇୟର ବୋନ୍ସ ଆସିଯିବ, ଓକେ। ତ ଏଇ ସବୁ ବୋନ୍ସ ର ସେପ କଣ? ଇରେଗୁଲାର। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଥିରେ ଆସେ ହେଲା। ନାଉ ତାପରେ ଦିସ୍ ଇଜ ୟୋର କଣ? ଏବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବେସିକାଲି ଟିସ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, we'll find that bone as a tissue, then we will find we have two types of bones। ହେଇଗଲା। as a tissue ଆମ ପାଖରେ ଦି ପ୍ରକାର bones ଅଛି, dense mammalian bone ହେଲା, dense mammalian bone and spongy bone ହେଇଗଲା। ତ ଡେନ୍ସ ମ୍ୟାମାଲିଆନ ବୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପଞ୍ଜି ବୋନ୍, ଓକେ। ତ ଏଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ଯିବା ହେଲା। ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ୟୁ ଟୁ ଆନାଦର ୱିଣ୍ଡୋ, ଜଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ମି 1 minute। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଡ୍ରଇଂ କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଡ୍ରଇଂଟେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଗକାଳେ ତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଥିଲା ନା, ତ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ମାନଙ୍କରେ ତମର ଏଇ ଡ୍ରଇଂଟା ବି ଆସିପାରେ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଦ ଡେନ୍ସ, ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରଇଂସ ଅଫ 11th କ୍ଲାସ। ତ ଯଦି ଆମେ 11th କ୍ଲାସ ପଢିବା, ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରଇଂସ ତମେ ଏଇଠି ପାଇବ, ଓକେ। ଚାଲ, ତ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ ବୋନ୍, ହେଲା କି ନାଇଁ? ତ वी आर स्टडिंग अबाउट बोन। तो एज इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, तमे पाइबा इथरे कौन? मैट्रिक्स एंड कंपोनेंट्स, ठीक अच्छी। तो मैट्रिक्स रे अगेन तमरा वाटर थी मेन, वाटर, तापरे तमर माने जो मैट्रिक्स कौन थी, तमर असेइन प्रोटीन थी, असेइन प्रोटीन, हाइलुरोनिक एसिड, एटा होची कनेक्टिव टिश्यू रो, ओके। हाइलुरोनिक एसिड तमे पाइबो, तापरे कौन पाइबो? यू विल फाइंड आयंस, आयंस रे कैटायंस आसी जाउची। ये सब नॉर्मल जिनस गुड़ा है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आउ एनायंस रे कौन पळे आसीबो? फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, ओके। ए सब जिनस तमे पाइ प्लस तमर एइथरे, ओके, तो जनरल मैट्रिक्स, तापर एइथरे डिपोजिशन ऑफ हाइड्रॉक्सी एपाटाइट क्रिस्टल्स, ओके। मैं विंडो शेयर करछि कि नहीं, ओके। तो आउ थ रीशेयर कर दउछि, हैला। तो आई थिंक यू आर एबल टू सी, हैला। तो डिपोजिशन ऑफ हाइड्रॉक्सी एपाटाइट क्रिस्टल, ओके। एटा होछि इंपोर्टेंट। तो हाइड्रॉक्सी एपाटाइट कोन? इट इज ए कैल्शियम सॉल्ट, ठीक अछि। तो सेई पई व्हाई द बोन इज हार्ड, दैट इज हैविंग हाइड्रॉक्सी एपाटाइट क्रिस्टल्स। कंपोनेंट्स रे कोन पाइबो? कोलाजेन फाइबर पाइबो, होला। इलास्टिन फाइबर लेस पाइबो, प्लस सेल्स। तो एइथरे तमे तीन प्रकार सेल्स पाइबो, ऑस्टियोब्लास्ट्स,
osteocytes and osteoclasts। ठीक अच्छे। तो ऑस्टियोब्लास्ट रो काम कौन? बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोसाइट्स कौन? मैच्योर बोन सेल। ऑस्टियोक्लास्ट कौन? बोन ब्रेकिंग सेल। तो यही तीन प्रकार सेल्स तमे पाइबो कोठी? तमे पाइबो इन केस ऑफ आवर हेगला। तो एटा मु जनरल बोन कहूची। एबे हमें डिस्कस करिबा कौन? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ओके, so this is the concept. So now we will discuss ultra structure of कौन? Ultra structure of dense mammalian bone। ठीक अच्छे। तो तार गोटे बढ़िया डायग्राम टे करिबा हमें। ओके, चलो तो एबे हमें ड्राइंग करिबा। सो नाउ वी विल ड्रॉ अबाउट द डेंस मैमेलियन बोन। ठीक अच्छे। ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट ड्राइंग से तमें जान ना। आमे कौन करिबा तार जो लेवलिंग भी करियार अछि तो से आमे कौन करिबा देख। तो नाउ एंजॉय ड्राइंग्स। तो बायोलॉजी ड्राइंग बढ़िया हेबा दरकार। तो एबे एटा सबुठु फर्स्ट आमे कौन करिबा? दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट रे कौन? तमर गोटे इनर अछि। तापर एटा होची हम गोटे क्रॉस सेक्शन देखिबा एंड एटा होची हमर बोन मैरो कैविटी। ठीक अछि। तो एटा मु तुमको गोटे सेक्शन देखौची। तापर एटा को हमें पाई सेक्शन कहू। हे गेला। माने एथरे ऊपर व्यू भी दुसुची तुमको, साइड व्यू भी तुमको दुसुची। क्लियर? तापरे तो हमर जो आउटर लेयर टा एटा होची कौन? एटा होची WFC। हेला। तो एबे कौन होची आउटर लेयर? तो ओके, तो आउटर लेयर हमें कौन देखिबा? ओके, तो एटा होची हमर आउटर लेयर हैला। एटा बोन। नाउ अबे हमें कौन करिबा? तो एटा ठीक नै होची। एक्चुअली हम लेवलिंग करके देखै देबी। नाउ ए जो लेयर टा हमें करूचे कौन? दिस इज योर आउटर लेयर। तो आउटर लेयर टा को हमें कौन कहबा? पेरियोस्टियम। तो पेरियोस्टियम रे कौन कौन अछि? तो एटा होची हमर कौन? तो एटा होची ऑस्टियोब्लास्ट लेयर। ओके, एटा हम गोटे लेयर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट लगेबा। ठीक अछि। एटी न्यूक्लियस कर दबा। तो बोन रे गोटे यूनिक जिंस अछि। तार लैमेलर ग्रोथ हबो। जो भी हबो गोटे सर्कल रूप रे हबो। तो से बळे एठी भी ऑस्टियोब्लास्ट कर दबा। लेकिन सर्कल एवरीथिंग विल ग्रो एज ए
सर्कल ताकू कौन कुआ जाए लैमेलर ग्रोथ ठीक अछि तो व्हाट आर दीज आर ऑस्टियोब्लास्ट्स ठीक अछि तो से पे ऑस्टियोब्लास्ट अछि एंड गोटे लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अछि तो से पे आकु कुआ जीवो कौन एंडोस्टियम एंड ताकु कुआ जीवो कौन पेरिओस्टियम हैला तो आमे लेबलिंग कर दबा एटा होची व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर एटा होची ऑस्टियोब्लास्ट लेयर एंड दी जन को मिसई देले कौन है जाउची पेरिओस्टियम सही भलिया एटा भी होची कौन so this is your what so this is your osteoblast layer हैला एटा होची osteoblast layer एंड एटा होची व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दी जन को मिसई देले कौन है जीवो एंडोस्टियम ठीक अछि तो दिस इज कॉल्ड एंडोस्टियम हो गया सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एंडोस्टियम ना ए जो ऑस्टियम है गला पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम ए दी जन कौन एइतरे तमरो ऑस्टियोब्लास्ट लेयर अछि ठीक अछि तो एई जो दीटा लेयर अछि हमर ऑस्टियोब्लास्ट लेयर ए माने बोन फॉर्मिंग तो एई लेयर टा कौन करिवो भीतर आड़कू नुआ लेयर ऐड करिवो एई लेयर टा कौन करिवो भीतर लेयर को एयर लेयर करिवो तो दैट इज व्हाई ग्रोथ ऑफ बोन को एडा को हमें कौन कहबा सेंट्रीपिटल डायरेक्शन एंड एडा को कौन कहबा सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन से पे ग्रोथ ऑफ बोन इज बाई डायरेक्शनल बुझिगला चलो तो तापर आमे कौन करिबा नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू तो आमे डिस्कस करिबा कौन तो बोन रे जेहेतु मैट्रिक्स टा डेंस अछि सेइथरे ऑलरेडी हमर कौन थिबो कैविटीज थिबे कोणा थिबे पाइप्स थिबे सो दिस पाइप जोड़ा वर्टिकल जाउची ताकू कुआ जाउची कौन दैट इज कॉल्ड हैवर्शियन कैनाल हे गला तो एटी गोटे हैवर्शियन कैनाल एटी गोटे हैवर्शियन कैनाल एटी गोटे हैवर्शियन कैनाल पाइबा क्लियर तापर एटा तो हमर से ऑस्टियोब्लास्ट लेयर उडा एटा ए वाला भी देखे परिबा हमें ठीक अछि तो एटा ए वाला भी देखे परिबा ऑस्टियोब्लास्ट लेयर उडा फाइन तापर कौन अछि हमर नाउ हमर ऑस्टियोसाइट्स ठीक अछि तो ऑस्टियोसाइट्स दे आर फाउंड इन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स तो आगे हमें लेयर कर दबा तो एडा होची ऑस्टियोसाइट्स ठीक अछि ना ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट डिफरेंस कौन थिबो एथरे कंटीन्यूअस प्रोटोप्लाज्म थिबो हेगला एडा हमें सेल्स कर दबा न्यूक्लियस फाइन तो वी विल फाइंड कंटीन्यूअस प्रोटोप्लाज्म माने कौन एमती तारा भलिया ए सेल्स गुडा दुसिबे हला द सेल्स विल लुक एज इफ व्हाट पूरा तारा भलिया दुसिबे फाइन एटा होची कंटीन्यूअस प्रोटो आबे हम जो मु तुमु इंडिविजुअल सेल देखेबी इट विल लुक यू विल नो सो एटा होची हमर कोन तो दिस इज योर कंटीन्यूअस प्रोटोप्लाज्म से भलिया एठी भी हमर ऑस्टियोब्लास्ट लेयर लगे दबा देखो ऑस्टियोसाइट लेयर ओके न्यूक्लियस ठीक अछि फाइन एटा होची ऑस्टियोसाइट एटा भी से भलिया गोटे आ गोटे लेयर लगे दबा तो एटा सब सर्कल हिसाब रे अछि हैला तो सर्कल को कौन कुआ जाए लैमेला तो एटा जो लेयर टा मु एबे आंकुची दिस इज इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला ठीक अछि तो दिस लेयर इज कॉल्ड
इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला एंड एठी जो लेयर टा मु आंकिछि एटा होछि कोन एटा होछि आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला ठीक अछि एटा बाहर सर्कमफेरेंस रे अछि एंड आर लेयर टा भीतर सर्कमफेरेंस रे अछि so that is outer circumferential lamella and this is inner circumferential lamella fine now तापर हमर another type of lamella पाइबा so that is called what that is called your Haversian lamella तो एटा होची हमर Haversian canal ता चारियाडे भी हमें lamella पाई ओके म अगर रिंग्स पूरा कर दउची तापर सेतरे सेल्स लगेबा हैला फाइन तो एठी भी हमें सेही बडा सेल्स करिबा जेमिति हम करूथिले ओके माने यू विल फाइंड ऑस्टियोसाइट्स फाइन एडा होची ऑस्टियोसाइट्स तो जो भी जिंस बोन रे पाइबो सबु सर्कुलर आकार रे थिबो सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए लैमेला हला फाइन तो एटा होची हमर हावर्सियन कैनाल चारियाड अछि तेबे ताकू कुआ जीवो कोन हावर्सियन लैमेला तापरे जो जागा बंची गला हमर सेठी आमे करिबा कोन इंटरस्टिशियल लैमेला ए जो जागाडा बंची गला एठी भी किछि ऑस्टियोसाइट्स थिबे हैला so these are called what these are called interstitial lamella so say osteocytes are arranged in four different types of lamella and those are called what those are called outer circumferential inner circumferential Haversian and interstitial ठीक अछि अब लेवलिंग कर दबा एटा होची कोन एटा होची आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला एटा होची कोन इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला तापर ए ग्रीन ए लेयर कोन Haversian lamella एंड এই जो मझिर मझिर हम जो ब्लू लेयर करले एटा होची इंटरस्टिशियल लैमे क्लियर एबे एई जो हावर्सियन कैनाल उडा वर्टिकल कैनाल ताकू कनेक्ट करिया पे हमको हॉरिजॉन्टल कैनाल दरकार पड़िबो हैला के नहीं तो ताकू कनेक्ट करिया पे हमको हॉरिजॉन्टल कैनाल दरकार पड़िबो and these horizontal canals are called what these are called Volkmann's canal ठीक अछि एई जो हॉरिजॉन्टल कैनाल को हम कोन कहबा Volkmann's canal ठीक अछि तो सेई पे हमर चारि प्रकार दीटा ऑस्टियोब्लास्ट लेयर पाइले पेरिओस्टियम एंडोस्टियम तापरे फोर टाइप्स ऑफ ऑस्टियोसाइट लेयर पाइले
outer circumferential, inner circumferential, Haversian and କଣ interstitial। ତାପରେ ଯୋଉ ଜାଗା ଆମର ବଞ୍ଚିଗଲା, ଜାଗା ତ ଦେଖ କେତେ କମ ଅଛି, ବଟ ଯୋଉ ଜାଗା ବଞ୍ଚିଗଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ କଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବା କଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ହେଲା। विल फिल मैट्रिक्स हियर। ओके, आगे मजा ड्राइंग का। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ଭଲରେ ପଢିବ ବାୟୋଲୋଜିରେ କଣ ଡାୟାଗ୍ରାମ ଟା ବଢିଆ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ବୋନି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସାଇଡରେ ଆମେ ଦେଖେଇଦବା ଏଇଟା ହଉଛି ବୋନି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ନାଓ ଏଇ ଯୋଉ ହାଭର୍ସିଆନ କେନାଲ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟରୀଟେ ପାଇବା। विल फाइंड वन आर्टरी। तापरे we will find one vein, आमे veins पाइबा। ठीक अछि, तापरे आमे गोटे lymph capillary पाइबा। ठीक अछि, we will also get a lymph capillary and we will also find nerve fibers। तो ये सब जिनस से भितर थिबो एंड एई जो यूनिट ताकू कुहा जाए हावर्सियन केनाल। जो हावर्सियन केनाल प्लस हावर्सियन लैमेली ताकू कुहा जाए ऑस्टियन एंड दैट इज ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए डेंस मैमेलियन बोन हैला। तो से ऑस्टियन रु ना पड़ीगला हमर बोन कौन ऑस हैला। तापरे ए मझिरे हमर कौन थिबो, मझिरे हमर अछि बोन मैरो। ठीक अछि, so this part is having the what, this is the bone marrow cavity। तो हमर बोन मैरो ए भीतर आसी गला। ठीक अछि, तो एटा होउची अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए डेंस मैमेलियन बोन। बुझिगला? ओके, so now you get the drawing। तो एवढा तुमको आंक्याम पड़िबो हैला। आजिकली स्कूल कॉलेजेस रे जो परीक्षा आसीबो एथरे एवढा परीक्षा आसीबो। सो आजिकली कोन टीचर्स माने टिके फॉरगिविंग हे जाउछंती। से तो कोन हला खराब ड्राइंग करले भी मार्क मिली जाउची। बट हम माने जे पढुथुलु पिला दिने आवर टीचर्स नेवर फॉरगिव अस। ड्राइंग भलो न हेले भी मार्क कटुथिला। तमे एमती दिले रांपिला वाला रांपी परिबेनी। यू हैव टू ड्रॉ गुड डायग्राम हैला। सो एटा मु तुमको ड्राइंग करिली एंड नाउ आई विल शो यू अनदर स्क्रीन। आमे एबे तार फोटोटा देखिबा केमिति दुसुची एक्चुअली हैला कि नहीं। So now we will go and share another drawing। ओके, जोटा आमे कंटेंट ड्राइंग देखुथिले सेटा आमे डिस्कस करिबा। क्लियर? एटा जनरल कनेक्टिव टिश्यू। तो एटी देखो से सब लिखा आइछि। ओके, तो इन टिश्यूज देखो हमर सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन लिखा आई जाइछि। Okay, solid rigid connective tissue matrix has deposition of hydroxyapatite salts ହେଇଗଲା, which is made up of calcium and phosphorus। ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଲ hydroxyapatite and fluorapatite salts। So 60 to 70% is inorganic matter and 30 to 40% होची organic matter। inorganic matter रे कौन पळे आसीबो, एई जो तमरा आयन गुडा, ए जो हाइड्रोक्सीएपेटाइट सॉल्ट्स गुडा। एंड ऑर्गेनिक रे कौन पळे आसीबो, कोलाजेन, इलास्टिन एंड ऑल द सेल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल, ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर सेल हेगला। तो कॉम्पैक्ट बोन रे हमर हावर्सियन कैनाल अछि व्हिच इज वर्टिकल कैनाल एंड वोल्कमैन्स कैनाल अछि हमर कोन हॉरिजॉन्टल कैनाल। तो वोल्कमैन्स कैनाल कनेक्ट दी हावर्सियन कैनाल्स हैला। तापरे
आमे लैमेली देखिले आमे केते प्रकार लैमेली देखिले वी हैव सीन फोर टाइप्स ऑफ ओके चलो सो दीज आर द फाइबर्स दैट यू विल फाइंड एटा ड्राइंग तो दिस इज द डेंस मैमेलियन बोन तो आमे देखिबा तो एबे वी विल फाइंड द स्ट्रक्चर ओके এই দেখো তো দিস আউটার যে চোপাটা ছড়া হচ্ছে দ্যাট ইজ কল্ড হোয়াট পেরিওস্টিয়াম ହେଇଗଲା তো দ্যাট ইজ ଦ পেরি এই ଦେଖ এইটা হচ্ছে যে ড্রয়িংটা ମୁଁ ତମକୁ ଆଙ୍କିକି ଦେଖେଇଲି ବୁଝିଗଲ ତ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କଣ ପାଉଛେ ଦେଖ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପେରିଓସ୍ଟିୟମ ହେଲା କି ନାଇଁ ତ ପେରିଓସ୍ଟିୟମ ରେ ଆମର କିଏ କିଏ ଥିଲା ହ୍ୱାଇଟ ଫାଇବ୍ରସ୍ କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ and layers of osteoblasts ঠিক ଅଛି এটা ତମର ପେରିଓସ୍ଟିୟମ ହେଇଗଲା and ପେରିଓସ୍ଟିୟମ ଥିଲେ କଣ ହବ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ବୋନ ହବ କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଅସ୍ଟିଓସାଇଟ୍ସ ଅସ୍ଟିଓବ୍ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ନାଉ फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर ଦେଖିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲ ଗୋଲ ଲେୟାର ଗୁଡା ଦେଖୁଛ ଗୋଲ 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 ଏଗୁଡା ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଦୁସୁଛି ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ହାଭର୍ସିଆନ ସିଷ୍ଟମ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲି ହାଭର୍ସିଆନ ସିଷ୍ଟମ ଏ ହାଭର୍ସିଆନ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଏଟା କେନାଲଟା ଅଛି that is haversial canal and these are layers of osteoblasts ঠিক আছে these are sorry layers of osteocytes ঠিক আছে so এইটা ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ହାଭର୍ସିଆନ ଲାମେଲା ଏଇଠି ହେଇଯିବ ଇନର ସରକମଫେରେନ୍ସିଆଲ ଏଇଠି ଆଉଟର ରେ ହେଇଯିବ ଆଉଟର ସରକମଫେରେନ୍ସିଆଲ ଏଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ଗୁଡା ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଦିସ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ ଲାମେଲା ଠିକ ଅଛି ଆହୁରି କ୍ଲିୟରଲି ଏଥିରେ ଦୁସୁଛି ଏଟା ଆହୁରି ବଢିଆ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଦେଖିଲ ମଜା ଆସିଲା ଡାଇଗ୍ରାମ କି ନାହିଁ तो अगेन आम एटा आउथरे देखिदबा एटा होची कोन पेरिओस्टियम एटा होची कोन आउटर सरकमफेरेंशियल लैमेला एटा होची कोन हावर्सियन लैमेला ए भीतरटा होची कोन इनर सरकमफेरेंशियल लैमेला एटा जेमिति बोन ग्रो हे जिवो एटा खाई खाई जिवो एटा हला तापरे ए जो मझिरे गैप से रही गला दैट इज कॉल्ड interstitial lamella. So four lamella of four different types of lamellae of osteocytes. And সেই ভিতরে তবে দেখুছ এই যে ভার্টিকাল ক্যানাল গুড়া এই ক্যানাল গুড়া সব কোন এডা হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানাল এডা ওকে সো এটা হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানাল এন্ড এটা হচ্ছে কোন ভোল্কম্যানস ক্যানাল ঠিক আছে তো দেখো কেতে সুন্দর ড্রয়িং দেখাইছি তোমাকে तो दिस इज द देखुच के नहीं आ जागा ही नहीं तो एंटायर मैट्रिक्स इज फ्लडेड विथ सेल्स तापरे जो जगह वगा बंचिला आमे सेतरे ठुसी देले कोन हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स so that is why the entire structure is dense and hard सेई पे ताकू कोन कहआ जाउची स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड जेहेतु सेटा हार्ड हबो हमको आगुरु पाइपलाइन बिछान पड़िबो नहले खाद्य पाद्य से माने पाइबे केंती बोन इज ए लिविंग टिश्यू प्लीज रिमेंबर डोंट थिंक इट इज डेड बोन इज ए लिविंग टिश्यू तेबे तुमको तुमको मेंटेन करया पड़िबो तांको खाद्य ऑक्सीजन विटामिन सब दवाम पड़िबो तापरे तांकर वेस्ट सफा करया पड़िबो तो एवरीथिंग हैज टू बी डन क्लियर चलो तो तापर आमे पळे आसीबा ओके सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट डायग्राम तो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स कौन थिला हमरो दे आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट क्लास्ट तो देखुला तो एटा होची तमर ऑस्टियोसाइट देखौची तो ऑस्टियोसाइट तो हम कोन देखुछ दैट तमर मु जो तुमको कहितली नि कि सेटा सब जो हमें एरो करबा तो दीज आर द कंटीन्यूअस प्रोटोप्लाज्म माने ऑस्टियोसाइट्स कोन माने हाथ धरी धरी हेकी पूरा गोटे एंटायर गोल टे तैयारी करती एंड दैट एंटायर गोल इज कॉल्ड ए लैमेला हला तो तुम केते सब अलग अलग प्रकार फोटो देखे दी रेडी
फाइन तो देखो एटा होची ऑस्टियोब्लास्ट्स, एटा होची ऑस्टियोसाइट्स, एटा होची ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल मान जोठू ऑस्टियोब्लास्ट तयारी हेले। तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर हेला ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट हेला ऑस्टियोसाइट। ठीक अछि। तापरे एवडा होचंती ऑस्टियोक्लास्ट्स। तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव हेले कौन से बोन को भांगी की कैल्शियम गुडा ब्लड रे दे दबो। तापरे ओके ऑस्टियोब्लास्ट कौन करिवो जेबे खाद्य पाद्य तमे कैल्शियम पाइबो से बोन को फेरे दबो। ठीक अछि। So these are different layers, different drawings. Okay. Now এটা হচ্ছে অস্টিওপ্রোজেনেটর সেল, এটা হচ্ছে অস্টিওব্লাস্ট সেল, এটা হচ্ছে অস্টিওসাইট সেল, এটা হচ্ছে অস্টিওক্লাস্ট সেল। অস্টিওক্লাস্ট আর অলসো এ টাইপ অফ ম্যাক্রোফেজেস। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ସେମାନେ ବୋନ୍ ଟାକୁ ଡିସଲ୍ଭ କରନ୍ତି and କ୍ୟାଲସିୟମ ଟାକୁ ବ୍ଲଡ କୁ ଦିଅନ୍ତି because we need calcium for different type of activity। କିନ୍ତୁ ଯେବେ କ୍ୟାଲସିୟମ ତମେ ଖାଉଛ ତ ଅସ୍ଟିଓବ୍ଲାଷ୍ଟ ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟାକୁ ଆଉଥରେ ବୋନ୍ କୁ ଫେରେଇ ଦଉଛି। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଯେବେ ଆମେ ଗ୍ଲୁକାଗନ ହରମୋନ ର ଫଙ୍କସନ ପଢିବା ସେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଢଉଛି। ତ ସେ କେମିତି ବ୍ଲଡ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଢଉଛି ଯେ ଅସ୍ଟିଓକ୍ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବ। ସେଇଭଳିଆ ଯେବେ ଆମେ ଇନସୁଲିନ ପଢିବା ସେ କଣ କରୁଛି ସେ ବ୍ଲଡ ସୁଗର କୁ କମେଇ ଦଉଛି। କେମିତି ବ୍ଲଡ ସୁଗର କମେଇ ଦଉଛି କୁହ? How it is decreasing blood sugar? By returning the calcium to bone। କାରଣ ଯଦି ତମେ ନେବା ଆଣିବା କରିବନି ତାହେଲେ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗିବ ତାହେଲେ ବୋନ ଟା ସରିଯିବନି। ଓକେ। So if you don't return the bone will also finish। ହେଲା any bank will finish if you don't return the money। Okay। So this is the concept। ହେଲା ଏଠି ସବୁକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଲ ଲେଖା ହେଇଛି। Now, so these are the different things। ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖ ତ ତମର ବୋନ୍ ଟା କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି। ଏଇଟା ଇନଫାଣ୍ଟ ର ହାଡ, ଏଇଟା ତମର ଚାଇଲ୍ଡ ର ହାଡ, ଏଇଟା ୟଙ୍ଗ ଆଡଲ୍ଟ ର ହାଡ, ଏଇଟା ଆଡଲ୍ଟ ର ହାଡ। ଠିକ ଅଛି। So this is the concept of dense mammalian bone। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋ ସ୍ପଞ୍ଜି ବୋନ୍। ତ ସ୍ପଞ୍ଜି ବୋନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। तो स्पंजी बोन या ताकू कैंसेलस बोन भी कहते हैं। स्पंजी बोन या कैंसेलस बोन से कौन थाए तमर गोटे लेयर एटा होची व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड देयर इज ओनली वन लेयर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। माने एठी तमर एंडोस्टियम नहीं खाली पेरियोस्टियम अछि। हैला तो एटा सपोज तमर हे गेला ऑस्टियोब्लास्ट लेयर। ठीक अछि। तो दिस both together it is called what? Periosteum। किंतु स्पंजी बोन रे एंडोस्टियम हैला एटा मन रखिबो। तापरे एइथरे कोन होउची एइथरे तमर जो ऑस्टियोसाइट लैमेला करूना है से माने नेट करूछ। हैला तो एइथरे हमें ऑस्टियोसाइट गुडा को एई भलिया लगेबा गोटे जाल रूपरे से माने बिछिकी थिबे। हैला तो दीज आर दी ऑस्टियोसाइट लेयर्स। तो किछि एमिति कर दबो। ओके एंड दीज आर तो ऑस्टियोसाइट रे कंटीन्यूअस प्लाटोप्लाज्म सब बळे देखिया पड़ी। ओके।
Fine. ଏଟା ହଉଛି osteocytes. So these are osteocytes and they form. तो ଏଇ structure ଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? Trabeculae. ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇପାଇଁ in case of spongy bone there is no lamella. ତ osteocytes form trabeculae. And ଯୋଉ ଜାଗା ବଞ୍ଚିଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ କଣ ଲଗେଇଦବା? ସେଇଥିରେ ଆମେ ଲଗେଇଦବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ବଞ୍ଚିଲା ଏଥିରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବା କଣ? ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। And ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ କଣ? ତ in case of spongy bone the matrix has red bone marrow. ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଡେନ୍ସ ବୋନ୍ ଥିବ ସେଇଠି କଣ ଥିବ? ୟେଲୋ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଠି ଅଛି। କ୍ଲିୟର? So now we'll go to the structures details ପଢିବା ଏଥିରେ। ଏଇ ଦେଖ ସ୍ପଞ୍ଜି ବୋନ୍। ତ ସ୍ପଞ୍ଜି ବୋନ୍ କୋଉଠି ଅଛି? ଲିମ୍ବ ବୋନ୍ ର ଏଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କରେ। ହେଲା। ତ end of limb bones are composed of spongy bone. They contain marrow. Co marrow? Red bone marrow. Okay. It carries no Haversian system. Hela. It consists of network of many fine bony plates or trabeculae, which is made up of कौन? तमरा osteocytes. ठीक अच्छी? तो this is the case. तो आमर दी प्रकार बोन है गला. तो dense bone and mammalian कौन? Spongy bone. एबे नेक्स्ट पढ़िबा हमें कौन? कार्टिलेज एज ए टिश्यू। ହେଲା। तो we'll study cartilage as a tissue. तो आमर तीनिटी जनरली we have three types of cartilage. कोटा कोटा हायालाइन कार्टिलेज। एटा होची जनरल माने जब तुम जब भी कार्टिलेज ता आरंभ हबो एटा हायालाइन कार्टिलेज रूप रे आरंभ। हायालाइन माने कौन? ग्लास। हायालस माने होची ग्लास। तो तार मैट्रिक्स टा ग्लास पर चिक चिक क्लियर। काहे की क्लियर? कहना सही से किसी भी फाइबर्स नहीं। बुझिगला? तो इन द हायालाइन कार्टिलेज you will find no fibers. So that is why it is clear matrix. ହେଲା। Now, ଯଦି ସେଇ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରେ କୋଲାଜେନ୍ ଫାଇबर ବଣ୍ଡଲ ପଶିଲା, so that will become white fibrocartilage. ହେଲା। and ଯଦି ସେଇଥିରେ ତମର yellow elastin protein ପଶିଲା, so that will be called elastic cartilage. ବୁଝିଗଲା? ଯଦି white fiber ଅଛି that will form white fibrocartilage. যদি yellow elastin fiber ଅଛି that is called yellow elastic cartilage. and in sharks ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିବ ତାଙ୍କର calcified cartilage ବି ଥାଏ। ମାନେ ଦେଖ shark ଟା ବିରାଟ ବଡ and cartilage is soft। तो cartilage ଯଦି soft ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ଏତେ skeletal support ନେଇ ପାରିବନି। किंतु sharks are very active animals। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ସେମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ। ତ ଯଦି ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଟିଲେଜ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କେଲିଟନ କଣ? ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡୋସ୍କେଲିଟନ ହଉଛି କାର୍ଟିଲେଜିନସ୍। ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେଇ କାର୍ଟିଲେଜରେ କଣ କରାହବ? ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଡିପୋଜିଟ କରିଦବା। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଟିଲେଜରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ଥାଏ they are called calcified cartilages. It is not found in our body. It is found in frog. It is found in sharks, etc. କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହରେ ତିନି ପ୍ରକାର କାର୍ଟିଲେଜ ଅଛି। ଆରମ୍ଭ ହବ ହାୟାଲାଇନ। ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି କୋଲାଜେନ ପଡିଲା ହେଡା ହେଇଯିବ ହ୍ୱାଇଟ ଫାଇବ୍ରସ୍। ଯଦି ଇଲାଷ୍ଟିନ ପଡିଲା that will be yellow. କ୍ଲିୟର? तो ଏଇଟା ତାର ଡିଟେଲ ଦେଇଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ପଢିବା। ଓକେ। ତ ଯେବେ ବି ଆମେ କାର୍ଟିଲେଜ ର ଡ୍ରଇଂ କରିବା
ଦେଖ ସବୁବେଳେ whenever in tissues ମୁଁ ତମକୁ ଆର କ୍ଲାସରେ ବି ଡିସ୍କସ କରିଥିଲି ଯେବେ ବି ଟିସ୍ୟୁଜ ର ଡ୍ରଇଂ କରାହବ ଲେଭଲିଂ କରାହବ ସଦାବେଳେ ଆଇଦର ବକ୍ସ ଡାୟାଗ୍ରାମ କରିବ ନହେଲେ ସର୍କଲ ଡାୟାଗ୍ରାମ କରିବ। ହେଇଗଲା ତ ଆଇଦର ମେକ୍ ଏ ବକ୍ସ ଅର ଏ ସର୍କଲ। ତ ଚାଲ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ତିନି ପ୍ରକାର କାର୍ଟିଲେଜ ତମକୁ ଦେଖଉଛି। ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସପୋଜ ମଝିଟା ଆମେ କରିବା କଣ ମଝିଟା ଆମେ କରିବା ହାୟାଲାଇନ ଏଇଟା କରିବା ଆମେ ହାୟାଲାଇନ ଏଇଟା କରିଦବା ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ ଫାଇବ୍ରୋ କାର୍ଟିଲେଜ एंड एटा करदबा हमें कौन हायालाइन काटे कौन सॉरी एटा करदबा हमें येलो फाइब्रो कार्टिलेज। ओके तो दिस विल मेक येलो फाइब्रो कार्टिलेज। तो अब सबुठु फास्ट हमें कौन पाइबा एटा होची आउटर लेयर होला एटा होची आउटर लेयर करदबा गोटे। सो व्हाट इज द आउटर लेयर तो एटा होची व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हेगला। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भीतर आड़कू गोटे लेयर ऑफ सेल्स लगेगा हला गोटे लेयर्स ऑफ सेल लगेगा। व्हाट इज दिस लेयर कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट माने कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल बट ए लेयर टा एथेरे नहीं। So we don't have chondroblast in the what? In the white fibrocartilage. But we will have chondroblast in the yellow fibrocartilage. तो सही पे ए दीटा को सांगेरे कौन कुआ जाए पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक अछि तो दिस इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम ହେଲା। नाउ ए जो पेरिकॉन्ड्रियम अच्छी तो से कार्टिलेज को भीतर आड़ को ग्रो करेगा एंड आंकर एंडोकॉन्ड्रियम न थाए सो दैट इज व्हाई ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज इज यूनिडायरेक्शन। तापरे तमे कौन पाइबो एटा होची मैट्रिक्स। तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। ना ए मैट्रिक्स रे आमे टिके टिके खाली जगह पाइब। ओके वी विल फाइंड सम फ्री स्पेस। ओके तो एठी आमे सम फ्री स्पेस पाइबा। ए फ्री स्पेस को कहा जाए कौन लैक्यूना ହେଲା। ए लैक्यूना भितरे डेवलप करंती कॉन्ड्रोसाइट्स ହେଲା। तो दे विल बी आइदर 1 2 और 4। तो गोटे लैक्यूना रे 1 2 या 4टा कौन कॉन्ड्रोसाइट्स थे। तो these are what mature cartilaginous cells called chondrocytes। ठीक अछि तो एबे कौन होची हायालाइन कार्टिलेज रे आउ किछि न थाए तो कौन थिबो तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तमे कौन करिया खाली जगह रे मैट्रिक्स भर्ती कर दो। जब मैट्रिक्स भर्ती हो जाउची तमर ए जो कार्टिलेज टा कौन इट विल लुक क्लीन एंड क्लियर किंतु एठी कौन हबो तमर व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज रे आमे कोलाजेन बंडल लगेगा। तो दिस इज बंडल्स ऑफ कोलाजेन फाइबर। ठीक अछि इन द केस ऑफ इलास्टिन देयर इज इलास्टिन प्रोटीन। तो इलास्टिन प्रोटीन टा गोटे गच्छ भलिया थाए। ओके इट लुक्स लाइक ए ट्री। सो दिस इज योर येलो इलास्टिन फाइबर एटा होची कोलाजेन बंडल हेगला।
तो कोलाजेन बंडल्स तो जो तेरे कोलाजेन थीबो सेटा को हमें कौन कहिबा तो दैट इज कॉल्ड योर व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज तापरे एइथरे इलास्टिन पकेले तापर जो जागा वंचिला सेथरे कौन पकेई दबा हमें सेथरे हमें पकेई दबा मैट्रिक्स हला सो दिस इज मैट्रिक्स फाइन सो दिस इज मैट्रिक्स ओके एटा को हमें मैट्रिक्स कहू तो बुझीगला दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो आमे कौन कौन देखिले पेरिकॉन्ड्रियम देखिले मैट्रिक्स देखिले एंड लैक्यूना भितरे कॉन्ड्रोसाइट्स देखिले क्लियर हाइलाइन रे कोलाजेन पड़िले व्हाइट फाइब्रो हेजिवो हाइलाइन रे इलास्टिन पड़िले येलो इलास्टिक कार्टिलेज हेजिवो ठीक अछि व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज रे किछि पेरिकॉन्ड्रियम न थाए ओके नाउ cartilage is soft why there is no deposition of calcium तो से पे कार्टिलेज टा जनरली कौन था सॉफ्ट ओके तो कार्टिलेज इज सॉफ्ट तो से पे हमर जो नेक्स्ट कार्टिलेज हबो कौन हबो ए देखो फिर डिफरेंस हमें पढ़ दबा तो एटा कौन हे गेला फर्स्ट टा होची हाइलाइन सेकंड टा होची इलास्टिन थर्ड टा होची व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज ठीक अछि तो एबे देखो कोड कोड मिले देखो पिटल स्केलेटल टिश्यू रे मिले हैला हाइलाइन तापर कोठी मिलिबो कार्टिलेज कार्टिलेज पार्ट ऑफ रिब्स रे मिलिबो हैला आउ कोठी मिलिबो तमरो कार्टिलेजेस जॉइंट रे मिलिबो ओके तापर कोठी मिलिबो ओके तापर रिंग्स ऑफ ट्रैकिया रे मिलिबो तो ई सब जगह रे तुम कोन मिलिबो हाइलाइन कार्टिलेज इलास्टिन कार्टिलेज कोड पाइबो पिना कान रे हैला तापर यूस्टेचियन ट्यूब रे लैरिंग्स रे एंड तमर थायराइड कार्टिलेज छोट छोट तीनटा अछि क्यूनिफॉर्म कॉर्निक्युलेट ओके एई सब रे तमे पाइबो इलास्टिक एपिग्लॉटिस रे पाइबो ठीक अछि यू विल आल्सो गेट द इलास्टिक कार्टिलेज इन द एपिग्लॉटिस हो गया तापरे सेल्स कोडा पाइबे पेरिकॉन्ड्रियम हाइलाइन रे अछि इलास्टिक रे अछि किंतु व्हाइट फाइबर रे नाही हला एडा में ड्राइंग करथिले कैल्सिफिकेशन एटा हेई पारे हाड़ तैयारी करिया पे एथरे हबनी एथरे भी हेई पारे टिके स्ट्रांग करिया हला एटलीस्ट टिके स्ट्रांग करिया पे हमें जमा कर परिबा कैल्शियम नाउ मेन सेल्स कोन कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट ओके नाउ एथरे कोन पाइबो so that is why basically in case of okay basically in case of cartilage so basically in case of cartilages हमारा फंक्शन टा कौन टिके सॉफ्टनेस भी दबो एंड टिके सपोर्ट भी दबो तो जोटी सॉफ्ट स्केलेटल स्ट्रक्चर दरकार एठी हमें कौन रखिबा कार्टिलेजेस एंड जोटी हार्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर दरकार सेठी हमें कौन रखिबा बोन बुझियला चल तापरे एड़ा सब देखुछ मैट्रिक्स तो कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स रे कौन कौन अछि हमर तो कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स रे हमर हाइलुरोनिक एसिड थिबो सेटा होछि टिश्यू ग्लू कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एटा यूनिक जिनिसटा कार्टिलेज रे गोटे स्लाइमी सब्सटेंस लाडुआ पदार्थ मिलिबो
that is called chondroitin sulfate. ସେଇ ଭଳିଆ କେରାଟିନ ସଲଫେଟ ପାଇବ। ଠିକ ହେଲା। ତ ଟିସ୍ୟୁ ଟା କଣ ଆମର ଟିକେ ବହଳିଆ ହବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ବହଳିଆ ହବା ପାଇଁ we will require either glycoproteins or proteoglycans। ହେଲା। ତ ଦିଟା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇପାରିବ। ଫାଇନ। ତାପରେ ତମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉଛି କଣ କୋଲାଜେନ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ହ୍ୱାଇଟ ଫାଇବ୍ରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲାଷ୍ଟିନ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ yellow elastic cartilage। ଓକେ। नाउ एटा हमें डिफरेंशिएट कर दबा। तो नाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। है कि नहीं। तो आमे कार्टिलेज भी पढ़िले स्केलेटल, बोन भी पढ़िले स्केलेटल। एबे हमें तांका भितरे तफात टा भी पढ़िले। क्लियर। नाउ कार्टिलेज रे सेल्स को कौन कहा जाए कॉन्ड्रोसाइटिन लैक्यूना। लैक्यूना माने खाली जगह। एंड ऑस्टियोसाइट्स से भी कौन पाइबा हमें बोन रे ऑस्टियोसाइट्स इन लैक्यूना। मैट्रिक्स रे कौन पाइबा प्रोटीन पॉलीसैकेराइड वाटर एंड कॉन्ड्रिन प्रोटीन। एडी को प्रोटीन टा यूनिक मिलिबो कार्टिलेज रे कॉन्ड्रिन। हैला कॉन्ड्रिन। एइथरे कौन थिबो ऑसेइन। हैला प्लस तमरा डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स थिबो जोटा कि हमर कार्टिलेज रे नाही। कार्टिलेज रे डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट नाही किंतु बोन रे अछि। तापरे ब्लड सप्लाई कार्टिलेज रे नथाए। दैट इज व्हाई कार्टिलेज को हमें एवास्कुलर कहू। देयर इज नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई टू कार्टिलेज। हैला किंतु हमर एइथरे ब्लड सप्लाई थाए बोन रे। ठीक अछि। कवरिंग कार्टिलेज रो कौन कहा जाउची पेरिकॉन्ड्रियम। एंड बोन रो कवरिंग को कौन कहा जीवो पेरिओस्टियम। स्ट्रेंथ कार्टिलेज रो कम एते स्ट्रांग नो एंड बोन रो स्ट्रेंथ होची बहुत स्ट्रांग। हैला तापरे मेटाबॉलिक फीचर्स ऑक्सीजन डिमांड कार्टिलेज रो कम कहीं बेसी सेल्स ना तुम देख लो कौन किछि दी चार्टा सेल रोची लैक्यूना रे किंतु बोन रे केते सेल्स हमें देखिले। तो से पे बोन रो डिमांड ऑक्सीजन रो खाद्य रो सब बेसी रोच किंतु आंकर सब डिमांड कम। हैला रिपेयर रिजेनरेशन होउची। तो पेरिओस्टियम थिले रिपेयर रिजेनरेशन हबो पेरिकॉन्ड्रियम थिले भी रिपेयर रिजेनरेशन हबो। ओके। ना तापर नेक्स्ट को जीवा। सो दिस इज द डिफरेंस से गेला। तो आमर सरीगला एसु पॉइंट्स। तापर आमे आउ थरे टिके रिवाइज कर दबा। आगरु आसी जीवा पूरा। तो बोन एज ए टिश्यू एंड कार्टिलेज एज ए टिश्यू रो विल डिस्कस। ठीक अछि। तो बोन रे हमें कौन देखिथिले दिस इज द डेंस मैमेलियन बोन। तो डेंस मैमेलियन बोन रे हमें कौन कौन पाइथिले पेरिओस्टियम बाहर थिला। तापरे लेयर्स एंड भितर एंडोस्टियम थिला। तापरे मझिरे 4 टाइप्स ऑफ कौन लैमेली पाइथिले आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली inner circumferential lamellae, Haversian lamellae, and interstitial lamellae. What is the unique point of Haversian lamellae? It is surrounding the vertical canals, and those vertical canals are called Haversian canals. The Haversian canal रू तमर vertical canals तैयारी होची। एंड से भितर तमर ब्लड वेसल्स अच्छी लिम्फेटिक्स अच्छी नर्व फाइबर्स। काहे के केनाल गुड़ा आगुरु थाए
बिकज आम जाने बोन टा गोटे हार्ड स्ट्रक्चर हम पर ताकू खाद्य पाद्य देवा पॉसिबल हबन तो से आगु पाइप गुड़ा बिछाम पड़ो नाउ वर्टिकल पाइप को कनेक्ट करने आम कौन करवा हॉरिजॉन्टल कैनाल्स लगेगा तो हॉरिजॉन्टल कैनाल्स कोड़ा लागिबो तो दे आर कॉल्ड व्हाट तो हॉरिजॉन्टल कैनाल कोड़ा वोल्कमेंस ठीक अच्छे तो दिस इज अबाउट द डेंस बोन तापरे आमे देखिथिले सेथरे अलग अलग प्रकार सेल्स अछि ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल सेटा बोन को तैयारी करिबो मूलरू तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर विल मेक ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर हब एंड सी हब ऑस्टियोसाइट एंड मैक्रोफेज गुड़ा कन्वर्ट हेकी तैयारी हेबे कोन तमर ऑस्टियोक्लास्ट तो ऑस्टियोक्लास्ट कौन करिवो से बोन को भांगिकी कैल्शियम काढ़िबो ऑस्टियोसाइट कौन करिवो से बोन को तैयारी करिवो तार मेंटेन करिवो ऑस्टियोब्लास्ट कौन करिवो से कैल्शियम टाको बोन को फेरे फाइन तापरे आमे डिस्कस करथिले कार्टिलेज एज ए टिश्यू तो कार्टिलेज रे आमे कौन कौन पाइथिले तो कार्टिलेज रे बेसिकली आमे पाइथिले गोटे मैट्रिक्स एंड से मैट्रिक्स रे किछि खाली जगह अछि दैट इज कॉल्ड लैक्यूना एंड से लैक्यूना रे हमर कौन रहुची से लैक्यूना रे हमर बोन सेल्स तो से जो बोन सेल्स माने कौन करती से माने आमर कौन कौन से कार्टिलेज सेल्स रुहती से माने आमर कार्टिलेज रो माने फंक्शन ता परफॉर्म करती कार्टिलेज सेल्स को कौन कुआ जाए कॉन्ड्रोसाइट एंड कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को कौन कुआ जाए कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कार्टिलेज ब्रेकिंग सेल्स को कौन कुआ जाए कॉन्ड्रोसाइट ठीक है so these are all different types of ओके तापरे आमे डिस्कस करथिले कोन तीनोटी प्रकार हमर कार्टिलेज अछि हाइलाइन कार्टिलेज व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज येलो हाइलाइन कार्टिलेज रु कार्टिलेज तैयारी हुए एला एंड हाइलाइन कार्टिलेज रे जदि हमें कोलाजन पके दबा फाइबर एटा व्हाइट फाइब्रस हे जीवो एंड जदि हमें इलास्टिन पकेबा एटा इलास्टिक कार्टिलेज हबो इलास्टिक कार्टिलेज हमर कोठी अछि बोन ए कोन कानर जो पिन्नाटा अछि रे बाहर हमर दुछि प्लस एपिग्लोटिस रे अछि एंड हमर व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज कोठी पाइबा इंटरवर्टिब्रल जॉइंट सेठी स्ट्रेंथ दरकार ना जोटी स्ट्रेंथ दरकार सेठी हमें व्हाइट फाइब्रस पाइ तो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट रे हमें जो डिस्क गुड़ा अछि दैट इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क तो ए इंटरवर्टिब्रल डिस्क रे किया अछि हमर व्हाइट फाइबर कार्टिलेज ठीक अछि तापरे हाइलाइन कार्टिलेज सबु जॉइंट्स रे मिलिबो तो सेई पई ताकू आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कुआ जाय so we will find the hyaline cartilage in all joints so that is why it is called what it is called articular cartilage plus fetal skeleton रे पाइबो जो पिला मानकर skeleton रे hyaline cartilage थिबो ता धीरे धीरे रिप्लेस हे की बोन हे थिबो एंड सो ऑन ठीक अछि तो एडा में डिफरेंस पढ़ुथिले तो हमारा फंक्शन कौन हाइलाइन कार्टिलेज रा forms all different types of cartilages forms bone provides cushioning and frictionless surface ठीक अछि आउ तापरे पेरिकॉन्ड्रियम कोथरे एटा सब नीट क्वेश्चन तो कोथरे पेरिकॉन्ड्रियम पाइबनी व्हाइट फाइबर पाइ बाकी दीटा एकरे अछि हला तापर मेन सेल टाइप कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रोक्लास्ट ठीक अछि हमारा जो व्हाइट फाइबर कार्टिलेज अछि
इधर तमर फाइब्रोब्लास्ट भी पाइब ओके तो ये जो हमारा व्हाइट फाइब्रो यू विल आल्सो गेट फाइब्रोब्लास्ट कहीं की कोलाजन फाइबर तैयारी करे ठीक अछि तापरे ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज इज वेरी वेरी लिमिटेड एंड तार रिपेयर रिजेनरेशन इज आल्सो वेरी वेरी लिमिटेड कहीं ना ब्लड सप्लाई से नहीं तो कार्टिलेजेस आर ए भास्कुलर टिश्यू से ब्लड सप्लाई नहीं ओके so this is something about what this is something about cartilages and bone okay so that's all for today आज हमारा क्लास चला तो नेक्स्ट क्लास से we will continue and we will discuss about muscles and nerves ठीक है so if you don't have any doubts so I will end the discussion today